شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ البصیر القدیر صدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یہ 7واں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو دارین کی بھلائیوں سے نوازے۔ کل کا بیان حضور سرکار سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہوا۔ آج جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا وہ گوشہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو، اور 5واں بیان جو میں نے کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا غزوہ خندق کے حالات کو، آج وہیں سے پھر بیان ہوگا۔ آپ اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر کے غور و فکر کے ساتھ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا گوشہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ ایمان آپ کا مچلے۔
آپ کی طبیعت کی رغبت نیکیوں کی طرف ہو، برائیوں سے نفرت ہو، حب رسالت اور عظمت رسالت سے آپ کا سینہ معمور ہو جائے۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جائیں۔ آپ کا ذہن و فکر مدینہ کی چھاؤں میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا آقا کی محبت میں لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مدینہ کے تاجدار کا رحم و کرم ہماری طرف متوجہ ہے۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 شعر سن لیجئے۔ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، تاکہ ٹوٹے نہ میرا صلی اللہ سے رشتہ، تاکہ ٹوٹے نہ میرا صلی اللہ سے رشتہ۔ یا رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، تاکہ ٹوٹے نہ میرا صلی اللہ سے رشتہ، صلی اللہ سے رشتہ۔ اور قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، ہم کو نہ ڈرائے دنیا، قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، ہم کو نہ ڈرائے دنیا۔ ہم مسلمانوں کا ہے کرب بلا سے رشتہ، کرب بلا سے رشتہ، ہم مسلمانوں کا ہے کرب بلا سے رشتہ، کرب بلا سے رشتہ۔ یا حبیب اللہ جھولیاں اپنے بھر جائے گی انشاءاللہ، جھولیاں اپنے بھی بھر جائے گی انشاءاللہ، ان کی آمین سے ہے اپنی دعا کا رشتہ، اپنی دعا کا رشتہ، ان کی آمین سے ہے اپنی دعا کا رشتہ، اپنی دعا کا رشتہ۔ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، تاکہ ٹوٹے نہ میرا صلی اللہ سے رشتہ۔ 2-3 شعر آپ اپنی زبان میں سن لیں۔ سج گیا عرش کئی اٹریا، لاگی حور ملک کی بجریا، چندرما نور لٹاوے لاکھ، چندرما نور لٹاوے لاکھ۔ سج گئے عرش کئی اٹریا، لاگی حور ملک کی بجریا، چندرما نور لٹاوے لاکھ، چندرما نور لٹاوے لاکھ۔ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھئی اجیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھئی اجیاری، بن موسم کے پھل گئے بگیا پھلون سج گئے ڈاری، بن موسم کے پھل گئے بگیا پھلون سج گئے ڈاری۔
बिन मौसम के फल गए बगिया, फूल सज गई डारी, डोले खुल्द कई मस्त बैरिया, चंद्रमा नूर लुटावेला, चंद्रमा नूर लुटावेला, काकर पाथर जीभ पाई के नाते नबी सुनावे, काकर पाथर जीभ पाई के नाते नबी सुनावे, भर भर थाला हो रही सदका मोतियन रूप लुटावे, भर भर थाला हो रही सदका मोतियन रूप लुटावे, छल के रहमत भरी गगरिया, चंद्रमा नूर लुटावेला, चंद्रमा नूर लुटावेला, सज गए अर्श कई अटरिया, लागी हूर मला की बजरिया, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, यहाँ जमी पर यहाँ जमी में वहाँ फर्श, यहाँ जमी में वहाँ फलक पर रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफहात उठ रहे थे, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफहात उठ रहे थे, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, जो अर्श पे जलवागर हुए थे। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की कुदरत में कुदरत ने लचकती है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। अरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न थे, अरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। कि शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलामी बोती ईमान बोले, वो नुक्तारस दकीका दान बोले, अदब का बतले ताबान बोले, वह हसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ल ऐबिन कान का कत खुलिकता कमा तशाऊ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदीस। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए अपने जानिसारों को खंदक खोदने की ड्यूटी मुतय्यन फरमा दी। चुनांचे 5 गज गहरी और 5 गज चौड़ी खंदक की खुदाई का काम शुरू हो गया। सहाबा खंदक खोदने में लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा जायजा लीजिए कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के मुहाफिज हैं और सारी कायनात जिसके दामने करम में पनाह ले, आज अपने वतन की हिफाजत के लिए मदीना शरीफ के किनारे किनारे खंदक खोदी जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दफा फरमाया था, ये खंदक खोदने की नौबत क्यों आई थी? अभी इब्तिदाए इस्लाम का वक्त है, इस्लाम बढ़ रहा है, लोग इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। जब देखा यहूदियों ने और कुछ नसरानियों ने तो साजिश की और मक्का जाकर के मक्का के काफिरों को उभारा। मक्का के काफिरों ने जाकर के देहातों में और कबीलों से मुलाकात की। 12,000 या 10,000 कुफ्फार इकट्ठा हो गए और 12-10,000 का लश्कर लेकर के वो सारे लोग अपने तमाम सरदारों के साथ मदीना पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब ऐसी सूरत में गौर व फिक्र फरमाया कि ये 10-12,000 गुफ्फारों का लश्कर मदीना तैयबा की सरजमीन की तरफ यलगार कर रहा है। इब्तिदाए इस्लाम का वक्त है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया। हजरत सलमान फारसी के मशवरे से खंदक की खुदाई शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए। या रसूल अल्लाह, हम अपने हिस्से की जमीन खोद रहे हैं गई है कि या रसूल अल्लाह वो चट्टान नहीं टूट रही है। अल्लाह के हबीब बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए। मेरे आका ने मुलाहजा फरमाया, सहाबी के हाथ से कुदाल को ले लिया और लेने के बाद उस चट्टान पर जोर से अल्लाह अकबर कहते हुए सरकार ने मारा। चट्टान का एक हिस्सा टूटा और चिंगारियां निकल पड़ी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर ऊती तो मफाती हल यमन। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने मुझे यमन की कुंजियां दे दी। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार
सरकार चटान पर पहली ज़रब मार रहे हैं और फरमाते हैं बड़ाई अल्लाह के लिए है, उसने मुझको यमन की कुंजियां दे दी हैं। नबी कौनैन अपने शहर की हिफाजत फरमा के लिए खंदक की खुदाई कर रहे हैं और यमन के फतेह की बशारत भी देते चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चोट लगाई, तब तक फिर एक हिस्सा चटान का टूट जाता है और चिंगारी निकलती है। आकाए करीम फिर इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, ऊती तो मफाती हल फारस, मुझको फारस की कुंजियां दे दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस के फतेह की बशारत अता फरमा दी है। सहाबी सुन रहे हैं। किसी सहाबी ने नहीं अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम इस वक्त तो इतने मजबूर हैं कि अपने शहर की हिफाजत के लिए हम खंदक की खुदाई कर रहे हैं और आप हमें यमन के फतेह की बशारत दे रहे हैं, हमको फारस के फतेह की बशारत दे रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि उन सहाबियों का ये ईमान और अकीदा है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़बान पाक से जो जुमला निकलता है वो जरूर पूरा होगा। नबी अपनी मर्जी से नहीं बोला करते हैं, बल्कि नबी कौनैन जब जब बोलते हैं तो वही खुदा हुआ करती है। नबी कौनैन जब जब कुछ का फरमाया करते हैं तो अल्लाह की वही से फरमाया करते हैं। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, वो दहन जिसके हर बात वही खुदा और चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तीसरी चोट उस चट्टान पर मारते हैं। बड़े बड़े सहाबा की ताकत फेल हो गई है, वो उस चट्टान को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा ने देख लिया कि मेरे सरकार जिस तरह नबूवत और रिसालत के अजीम दर्जा पर फाइज हैं, इसी तौर पर मेरे आका को जिस्मानी ताकत भी हासिल है। चुनांचे जिस्मानी ताकत का हाल ये था कि एक मर्तबा रुकाना नामी एक पहलवान था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो निकल पड़ा। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, सोए हुए थे, अचानक ये पहुंच गया। आकाए करीम की निगाह पड़ी, पहुंच करके ये सरकार पर हमला करना चाहता है, तब तक थरथरा कर तलवार हाथ से छूट करके गिर पड़ी। उसने कहा मोहम्मद, अब हमारे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। यह अरब का बड़ा शहसवार पहलवान था, अपनी ताकत और कुव्वत पर जिसको नाज था। अरब का कोई भी बहादुर अपने ताकत और कुव्वत का जौहर दिखाने के लिए उस रुकाना से नबुर्द आजमाई करने के लिए तैयार नहीं होता था। नबी कौनैन बिला फिक्र इरशाद फरमाते हैं, मेरी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा। उसने कहा मोहम्मद, तुमसे मैं कुश्ती लड़ूंगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं है, नबी से हाथापाई हो जाती है। मेरे सरकार ने चंद ही लम्हे में रुकाना को जमीन पर लेटा दिया। रुकाना ने अर्ज किया, मैंने मान लिया आप नबी बरहक हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी ताकत और कुव्वत को भी मुलाहजा फरमाओ। नबी के जिस्मानी ताकत और कुव्वत को मुलाहजा कर रहे हो। मेरे नबी रात दिन का रोजा रख रहे हैं, दिन में भी रोजा रखते हैं और रात का भी रोजा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख रहे हैं। जब सहाबा ने देखा तो सहाबा की जिंदगी का दस्तूर तो यही था कि नबी की वो इख्तिदा करें, नबी जैसे चल रहे हैं इसी तरह चलने की वो कोशिश फरमाया करते थे। नबी कौनैन जिस तरह इबादत फरमा रहे हैं इस तरह से वो इबादत किया करते थे। हर हर लम्हा और हर हर सेकंड नबी की इत्तिबा की वो कोशिश किया करते थे। सहाबा की निगाहें देख रही हैं कि नबी कौनैन रात में भी रोजा रख रहे हैं, नबी कौनैन दिन में भी रोजा रख रहे हैं। सहाबा ने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। आका की निगाह सहाबा के चेहरों पर पड़ जाती है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम्हारे चेहरे उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं, होंठ सूखे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम भी रातों दिन का रोजा रख रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जुमले को सुना तो इरशाद फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान आका इरशाद फरमा रहे हैं, नबी का जो जलवा देख रहे हैं उनसे ये इरशाद हो रहा है। नबी की खिदमत में जो सुबह शाम रह रहे हैं उनसे ये इरशाद हो रहा है। नबी की बारगाह में अपनी जरूरतों के लिए जो कशकोल फैलाए रहते हैं उनके लिए इरशाद हो रहा है। नबी की बारगाह में अपनी तमन्नाओं के लिए जो फरियादी बनकर के पेश हो रहे हैं उनके लिए इरशाद हो रहा है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, मेरे सहाबा तुम में मेरी तरह से कौन है। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। ये खिताब अबू बकर सिद्दीक से भी हो रहा है, उमर फारूक आजम से भी हो रहा है, हजरत उस्मान गनी से भी हो रहा है, मौलाए कायनात से भी हो रहा है। जुमला सहाबा किराम ने नबी के इस फरमान को सुना है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में मेरी तरह से कौन है। किसी सहाबी ने अर्ज नहीं किया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरह हूं। नहीं नहीं, नबी फरमा रहे हैं तुम हमारी तरह नहीं हो। जब सहाबा नबी की तरह नहीं है तुम कैसे नबी की तरह हो सकते हो। जब सहाबा नबी की तरह नहीं बन सकते हैं तुम नबी की तरह कैसे बन सकते हो। आका इरशाद फरमाते हैं आगे, रब्बी तिइनी व इस्कीनी, मेरा रब तो मुझे खिलाता और पिलाता है। नबी कौनैन ने बता दिया कि तुम अपनी तरह से मुझे समझ करके कोई काम न करना। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को आमिल बिल हदीस बताया करते हैं कि हम आमिल बिल हदीस हैं, हमारा ईमान तो नबी की सारी हदीसों पर है, लेकिन नबी की सारी हदीसों पर अमल नहीं कर पाओगे। अमल करो। नबी कौनैन फरमाते हैं जब रातों दिन का
रोजा रख रहे हैं, रखो हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो रातों दिन का रोजा। अगर रातों दिन का रोजा नहीं रख पा रहे हो तो तुम आमीन बिल हदीस कैसे कहला रहे हो? हम तो अहले सुन्नत व जमात इसीलिए हैं कि अमल सुन्नतों पर होगा, अमल फर्जों पर होगा। नबी कौनैन के हर फरमान पर हमारा ईमान है, लेकिन हर फरमान पर अमल नहीं किया जा सकता है। नबी फरमाते हैं अय्युकुल मुस्लिम, तुमने हमारी तरह से कौन है तो नबी की तरह कौन बन पाएगा? अगर नबी की तरह कोई बनता है तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी की तरह अपने को कोई तसव्वुर करेगा तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। नबी की तरह अपने आप को ख्याल में लाएगा तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, बेईमान होकर के दुनिया से जाएगा। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ईमान जौहर है, ईमान रोशनी है, ईमान बुरहान है। अगर ईमान नहीं है तो प्यारे दोस्तों जिंदगी बर्बाद और तबाह है। और ईमान नाम है अज़मत रिसालत अपने दिल में बसा लेने का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल से अपने सीने को जगमगा लेने का। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत को भी सहाबा ने मुलाहजा फरमाया। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं तुम कभी भी अपने नबी को अपनी तरह से ना समझना, कभी भी नबी कौनैन को अपनी तरह से तसव्वुर न करना। अरे खुदा की कसम नबी कौनैन का करीमाना हाल तो यह है कि सहाबा ने देख लिया कि मेरे शिकम पर भी पत्थर बंधे हुए हैं और नबी के शिकम अतहर पर भी पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन वही नबी हैं थोड़े से खजूर में सारे लोगों को खिला दिया करते हैं। वही नबी कौनैन हैं थोड़े से पानी से सबको पिला दिया करते हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान। या रसूल अल्लाह, या आसमान भी दस्तरखान है, ये जमीन भी दस्तरखान है, ये सब जमाना वाले आपके मेहमान हैं। आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा 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 तेरा। मज़हब इस्लाम मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला सुभानी सुभान अल्लाह। आप जरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मताला फरमाते चलिए, मेरे सरकार के जिस्मानी कुव्वत को भी देख लीजिए। ये नबी के जिस्मानी कुव्वत का हाल है जिस चट्टान को कोई बहादुर से बहादुर सहाबी नहीं तोड़ पा रहा है। नबी कौनैन ने 3 ज़रबों में उस चट्टान को तोड़ दिया। अब एक बात और बता दूं, फारस और यमन ये शाम हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह हुआ है। फतेह होने वाला मुल्क हजरत उमर फारूक आजम के दौर में है। बशारत नबी आज दे रहे हैं और फरमाते हैं ये फतेह हमारी फतेह है। तो हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत बरहक साबित हो रही है। जरा शिया हजरात भी इस पर तवज्जो करें और उनकी किताब में भी यह हदीस पाई जा रही है। वो ये कह करके नहीं गुजर सकते हैं कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने नोट किया है हम नहीं मानते, फला ने नोट किया है हम नहीं मानते। ये अपनी किताबों में भी इस नबी कौनैन की हदीस को नोट कर रहे हैं। मेरे सरकार उमर फारूक आजम के दौर में फतेह होने वाले मुल्कों के ताल्लुक से अपनी फतह करार दे रहे हैं। पता चला कि खिलाफत फारूकी बरहक है, नबी कौनैन के दूसरे खलीफे बरहक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी का पहलू मुलाहज़ा फरमाओ। सरकार की बारगाह में मैंने अर्ज किया था कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए थे और सरकार हजरत जाबिर के घर अपने सारे साथियों को लेकर के पहुंचे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके आटे में अपना लुआब शरीफ डाला और उसके बाद हांडी में गोश्त के अपने लुआब को डाला। इरशाद फरमाया जाबिर अपनी बीवी से कह दो और औरतों को बुला ले, खाना तैयार हो और 10-10 आदमियों को बुलाते जाओ, सब खाते जाएं। लोगों को बुलाते जा रहे हैं, सब खाते जा रहे हैं। रावियान हदीस का बयान है कि खाने वाले 1000 से ज़ायद थे। अल्लाह अकबर। 1.5 सेर जौ के आटे में नबी कौनैन ने इतने सहाबा को खिला दिया। एक बकरी के छोटे से बच्चे के सालन में इतने सहाबा को सरकार ने खिला दिया। तो अब आपको आला हजरत का शेर पढ़ना पड़ेगा। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खान लक़ब किसका है तेरा तेरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सबको खिलाते हैं तो फरमाते हैं जाबिर अपने घर वालों को भी कह दो खा लें, तुम भी खा लो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सरकार आप तो तनाउल फरमाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तनाउल फरमाया। यहाँ तक के वाक़यात तो सीरत की बहुत सारी किताबों में मिल रहे हैं। यहाँ तक का मामला तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी मसनवी शरीफ में एक और बात इसी कबील से तहरीर फरमाते हैं। मौलाना
मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने का इरादा फरमाया तो फरमाते हैं जाबिर तुम्हारे बच्चे तो हैं? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। वो बच्चे कहाँ हैं या रसूल अल्लाह, आप खाना तनाउल फरमाएं। नबी कौनैन ने फरमाया आखिर हैं वो कहाँ बच्चे? उन बच्चों का मामला ये हुआ था कि हजरत जाबिर के 2 बच्चे थे। जब उन्होंने अपने बाप को देखा कि जानवर को इस तरह से ज़बह कर रहे हैं तो बच्चे अपने बाप के नकल को उतारने के लिए मकान की छत पर चले गए, वही छुरा ले लिया। हजरत जाबिर तो दावत देने के लिए चले गए हैं। एक बच्चे ने कहा जरा लेटो मैं बता दूं कि अब्बा ने जानवर को कैसे ज़बह किया है। बचपन का माहौल है, जैसे वो जमीन पर लेटाए उन्होंने छुरा फेर दिया, छुरे का फेरना था, गला कटा, खून निकलने लगा, तड़प गया बच्चा। दूसरा बच्चा देखा वो भी घबरा गया, कूद पड़ा छत से, दोनों ज़ाये हो गए। दोनों की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। अहलिया ने जाकर के देखा तो दोनों बच्चों की जान चली गई है, मगर कैसी साबरा और शाकरा खातून वो थी। उन्होंने देखा मेरे बच्चे का गला कट गया है। दूसरे ने छलांग लगा ली, दोनों ज़ाये हो गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, वो रोती नहीं है। उनका अकीदा और ईमान है कि मसीह दो आलम हमारे घर आने वाले हैं, नबी कौनैन हमारे घर आने वाले हैं। खुशी जिसके दरवाजे से बट रही है वो रसूल आने वाले हैं। रोने का कोई वजह नहीं है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उठाया और उठाने के बाद एक कमरे में सुलाकर चादर डाल दी। आका फरमाते हैं जाबिर बच्चों को बुलाओ। जब जाबिर आए तो बीबी ने बता दिया था इस तरह से मामला हुआ। कहा बीबी खामोश रहो, नबी कौनैन आए हैं जिनके करीमाना हाल का मामला ये हुआ करता है कि गमज़दों को रोज़ा मुज़दा दीजे की है और बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका फरमाते हैं जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हैं। सरकार ने फरमाया बुलाओ। उन्होंने ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह वो इंतकाल कर गए। इस तरह का हादसा हुआ, पहले कुछ नहीं बताया, गए कमरे में खड़े हुए, मेरे बच्चों उठो अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। दोनों उठ करके बैठ गए। जरा अपने नबी का मौजज़ा मुलाहज़ा फरमाओ। वो कौन है जो कहा करता है नबी को इख्तियार नहीं है? वो कौन है जो कहता है नबी दुखियों को दुख को दूर नहीं फरमा सकते हैं? ये देख अपने नबी का मौजज़ा, ये देख अपने नबी का इख्तियार। नबी कौनैन का नाम लेकर के हजरत जाबिर ने आवाज दी हो तो दोनों मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाते हैं, दरबारे रिसालत में हाजिर हो जाया करते हैं। खुदा की कसम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब फरियाद पेश करते हैं फरियाद सुनी जाती है। आओ सुनो, मेरे सरकार ने इस तरह से उन दोनों बच्चों को जिंदा किया। अगर कोई कहे ये तो मौजज़ा है, नबी जिंदा फरमा दिया करते हैं। मेरे प्यारे नबी का सरापा वजूद मौजज़ा है, इसीलिए तो हम कहते हैं इल्मे गैब भी मौजज़ा है, इख्तियार भी मौजज़ा है, शफाअत भी मौजज़ा है, खाना पीना भी मौजज़ा है। नबी का सारा वजूद मौजज़ा है, नबी का बोलना मौजज़ा है, नबी का उठना बैठना मौजज़ा है। नबी तो सरापा मौजज़ा बन करके तशरीफ लाए हुए हैं। मौजज़ा ही तुम तस्लीम कर लो तो नबी के इख्तियार पर कभी तुम बहस नहीं करोगे, नबी की ताकत और कुव्वत पर कभी तुम बहस नहीं करोगे। जो नबी मुर्दे हुए बच्चों को जिंदा फरमा सकते हैं, उस नबी से जो फरियाद पेश की जाए मेरे आका और इस फरियाद को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उम्मती फरियाद करे और नबी ना सुनाए। खुदा की कसम जब जब उम्मती फरियाद करेगा नबी सुन रहे हैं, जब जब उम्मती आवाज देगा नबी सुन रहे हैं, जब जब उम्मती अपने तमन्नाओं की भीख मांगेगा नबी अता फरमा रहे हैं। फरियाद उम्मती जो करे हालदार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अल्लाह, आप जरा मुलाज़ा फरमाइए, कुरान से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि नबी कौनैन ने मुर्दों को जिंदा किया, हज़रत ईसा भी मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। चुनांचे कुरान शरीफ में आयत करीमा है उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। हज़रत ईसा फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से मैं कोढ़ियों को अच्छा करता हूँ, मैं नाबीनाओं को आंख दे दिया करता हूँ। तो कुरान में रब फरमाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत ईसा कोढ़ियों को अच्छा फरमा रहे हैं, हज़रत ईसा नाबीनाओं को आंख दे रहे हैं, हज़रत ईसा मुर्दों को जिंदा फरमा रहे हैं। हज़रत ईसा के लिए इन चीजों का इनकार कर दो तो कुरान का इनकार लाजिम आएगा, तुम्हारा दाखिला इस्लाम में नहीं रहेगा। अरे जालिम, जिन बातों को तू ईसा के लिए मान रहा है यही बातें अपने रसूल के लिए क्यों नहीं मान रहा है? हज़रत ईसा अगर मुर्दों को जिंदा फरमा रहे हैं तो मेरे सरकार भी तो जिंदा मुर्दों को फरमा रहे हैं। अगर हज़रत ईसा को हुओं को अच्छा कर रहे हैं तो नबी की दरबार में हर मरीज शिफा पा रहा है। अगर हज़रत ईसा नाबीनाओं को आंखें अता फरमा रहे हैं तो नबी कौनैन की भी तो रोशनी बट रही है, नबी की ज़िया आज भी बट रही है, कल भी बट रही थी। नबी की बारगाह से आज भी रोशनी लोग पा रहे हैं, कल भी पा रहे थे।
इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे नबी की बारगाह से तुम्हें मिलता क्या नहीं है, सब कुछ पा रहे हो। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे सुन, तेरे नबी की शान का आलम तो ये है कि सबसे आला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, बात चल रही है ग़ज़वे खंदक की। ग़ज़वे खंदक के करीब आकर के तमाम कुफ़ार पहुंच गए हैं। अबू सुफियान आए हैं, अकरमा आए हैं, खालिद बिन वलीद आए हैं, बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं। अभी हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम नहीं लाए थे, अभी हजरत अकरमा इस्लाम नहीं लाए थे, अभी अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे। ये सारे सरगना इस्लाम के खिलाफ तलवारें लेकर के मदीना पर आए हैं। लेकिन आप सुनते रहते हो, यही हजरत खालिद बिन वलीद हैं, रसूलुल्लाह के कदमों में आ गए हैं। यही हजरत सुफियान हैं, नबी का कलमा पढ़े हैं। यही हजरत अकरमा हैं, नबी का कलमा पढ़े हैं। इन बहादुरान कौम को किसने कलमा पढ़ाया है? ये तो तलवारों के जोर से कलमा नहीं पढ़े हैं, बल्कि तलवारें इस्लाम के खिलाफ लेकर के आए थे। पता चला कि जिस कौम ने भी इस्लाम के खिलाफ तलवारें उठाई हैं, रब की मशीयत हुई तो उसी कौम के बहादुरों ने इस्लाम का कलमा भी पढ़ा है और इस्लाम के नाम पर अपने जिस्म की खून की कुर्बानी भी पेश कर दी है, अपने खून का कतरा भी बहा दिया है। ग़ज़वे खंदक इसलिए उसे कहा जाता है। ग़ज़वा के माना होते हैं लड़ाई के, जंग के, और खंदक के माना होते हैं खाई के। चूंकि खाई खोदी गई थी मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए, खाई के उस पार को पार ठहर गए हैं, कोई रास्ता उनके निकलने के लिए नहीं है। जब वो देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं, ए लोगों, हमें बड़े बड़े साहिब जंग हो, हमें बड़े बड़े जंगी तदबीरों को जानने वाले हो, लेकिन मोहम्मद ने जो जंगी तदबीर इख्तियार की है, ये बात किसी के ज़हन फिक्र में नहीं आई। देखो शहर मदीना की हिफाजत कैसे कर दिया है, इस खंदक को पार करके कोई नहीं जा पाएगा। चुनांचे वो उधर ठहर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहदाइयों को लिया और 3000 जानिसारों के सरकार लेकर के जो एक रास्ता रखा गया था, उस रास्ते पर आपने मुतय्यन फरमा दिया। मदीना शरीफ में बच्चों और औरतों को और दूसरे लोगों को महफूज जगहों पर कर दिया गया, मोहल्ला मोहल्ला बांट दिया गया, हिफाजत कर दी गई। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को सरकार ने मदीना तैयबा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और औरतों की हिफाजत के लिए पहरा देने पर हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुतय्यन फरमाया। ये सारे के सारे लोग मदीना तैयबा में ठहरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अपने जानिसारों को लेकर के 3000 का दस्ता 12000 के मुकाबले में खाई के इस पार हैं। कुफ्फारों के सारे बनाए हुए प्लान फेल हो जाते हैं। वो अपने घोड़ों को इधर से उधर दौड़ाते हैं, देखते हैं कोई जगह नहीं है कि हम एक बारगी मदीना पर हमला कराएं। चुनांचे कई रोज का अरसा गुजरा। एक रोज उनमें का सबसे बड़ा बहादुर अम्र इब्ने अब्दे उद था। ये इतना बड़ा बहादुर था कि मक्का के सारे कुफ्फार इसकी ताकत और कुव्वत पर नाज किया करते थे। चुनांचे अम्र इब्ने अब्दे उद ये अपने घोड़े को पूरी खाई के किनारे किनारे दौड़ाता है। एक जगह इसको तंग जगह नजर आ गई, चुनांचे अपने घोड़े को इसने कुदा दिया जल्दी से और कूद करके मैदान के इस पर आया। दंदनाता हुआ आ जाता है, लश्कर इस्लामी के सामने आवाज देता है, हल मिन नवारिज़, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, मौलाए कायनात निकले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार को लेकर के जुल्फ़िकार नामी तलवार को आगे बढ़े। उधर से अम्र इब्न अब्दे उद आता है। जब उसने देखा तो कहा, अली तुम आए हो हमारे मुकाबले में? हाँ मैं आया हूं। अली कुरैश के किसी और आदमी को भेज दो। तुम्हारे बाप अबू तालिब से हमारे बाप उद के बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बाप से इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूं। तब तक हजरत अली ने फरमाया, ये मैं मानता हूं मेरे बाप के तेरे बाप से अच्छे दोस्ताना ताल्लुक थे, लेकिन तू इस्लाम का दुश्मन बन करके आया है। मैं चाहता हूं कि तुझे खाको खून में तड़पा दूं। तब तक वो बहुत खफा हो गया। उसने अपनी तलवार को सौंप लिया। कहा, अली हमारी तलवार के वार को कोई रोक नहीं सकता है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं तेरी तलवार की धार को रोकने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल की निगाहें नबूवत देख रही है। मेरे आका अपने दस्ते नबूवत को रब की बारगाह में बुलंद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार सारा इस्लाम सारे कुफ्र से टकरा गया है, मौला अली की लाज रख ले। तब तक लड़ाई शुरू हो जाती है, तलवारें चल रही हैं। खुदा की कसम इतना बड़ा पहलवान वो था, ऐसी धनाधन तलवार चली है कि गर्दो गुबार इतना उठा कि आवाज तलवार के चलने की आती थी। ना अली दिखाई देते थे, ना अम्र इब्न अब्दे उद दिखाई देता था उस गर्दो गुबार में। इतना गर्दो गुबार उड़ा है उस रेत के
के मैदान में। अब आप पूछो कितनी भयानक जंग हुई। ये वही हजरत अली की तलवार जुल्फकार है जिसके ताल्लुक से कहा जाता है शेर मर्दा शाहे अज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। ये अली की तलवार जुल्फकार है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अली जैसा कोई जवान नहीं है। अली अल्लाह का शेर है। अली शाहों का शाह है। शाहे मर्दा शेर अज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। तलवारें दोनों तरफ से चल रही हैं, गर्दो गुबार में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हज़रत अली ने ऐसी वार की है और इस तरह से मारा है कि अम्र इब्न अब्द उद दो टुकड़े जमीन पर होकर के गिर जाता है। अब लड़ाई का नक्शा पलट गया, आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी देर के बाद जब गर्दो गुबार छंटा तो जानबैन देख रहे हैं कि अली अम्र इब्न अब्द उद के सीने पर चढ़े हुए हैं, उसकी गर्दन काट रहे हैं। हज़रत अली ने गर्दन काटी, उसकी तलवार को ले लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हो गए। मेरे सरकार की खुशी की इंतहा नहीं रही, आंखों से आंसू जारी हो गए। रब का शुक्र अदा फरमाया। वो अल्लाह के अली हैं, वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली हैं। अम्र इब्न अब्द उद को मारा खंदक के मौके पर। हाँ, और एक काफिर को मारा गया था। गज़वे खंदक के मौके पर 3 काफिर मारे गए थे। अम्र इब्न अब्द उद मारा गया था, 2 और मारे गए थे और 9 सहाबी शहीद हुए थे। इतनी भयानक लड़ाई थी और इस तरह से था 1 महीना तक मुहासरा वो लोग किए हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। एक ऐसी भी नौबत आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मसालेहाना पैगाम आया तो मेरे सरकार ने देखा कि सुलह कर ली जाए। चुनांचे सहाबा को आपने जमा फरमाया और जब जमा फरमाते हैं तो औस और खजरज दो बड़े बड़े कबीले थे, ये दोनों कबीले के जवान खड़े हो गए। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किस बुनियाद पर मसालहत हो रही है, कौन सी राय हुई है? आका ने फरमाया कि मदीना शरीफ की खजूरों की पैदाइश का 3रा हिस्सा इन लोगों को दे दिया जाएगा। ये लोग साल में आकर के ले जाएं, अपना मुहासरा उठा लें। तब तक एक सहाबी तड़प गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फैसला अगर आप फरमा रहे हैं तो हमें मंजूर है और रब का हुक्म है तो हमें मंजूर है, और अगर आप हमारी सलामती के लिए ऐसा कर रहे हैं तो या रसूल अल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम खाको खून में तड़प जाएंगे मगर ये फैसला हम नहीं मानेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ, हम तुम्हारी सलामती के लिए ऐसा कर रहे थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अपनी सलामती आपके कदमों में कुर्बानी देने में समझ रहे हैं। हम अपनी सलामती अपना खून बहाने में समझ रहे हैं। हम अय्याम जाहिलियत में तो इन्हें कुछ समझते ही नहीं थे और अब तो हम इस्लाम की इज्जत से माला माल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर हम कटे तो शहीद होंगे, हम कटे तो आपके नाम पर कुर्बानी हमारी होगी। या रसूल अल्लाह, ये सुलह हमें मंजूर नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, हमारे जानिसार इसको कबूल नहीं कर रहे हैं, वापस चले जाओ। वापस चले गए, मुहासरा और तेज कर दिया गया। चुनांचे अबू सुफियान ने ललकारा कि कल बहुत जोरदार हमला किया जाएगा। इस तरह से तो ये लोग हमला करने के लिए तैयार हुए और एक बहुत बड़ा चालाक उसमें था काफिर। वो बड़ी मुश्किल से खंदक को किसी साइड से पार करके अंदर आ गया। अंदर जो यहूदी मदीना शरीफ में रह रहे थे, कबीले कुरैश के लोग, उन कुरैशियों से अल्लाह के रसूल ने दोस्ताना सुलह कर ली थी कि तुम्हारी तिजारत होगी, हमें कोई हर्ज नहीं होगा, तुम्हारे जानो माल की हम भी हिफाजत करेंगे, मदद करेंगे, तुम भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी मदद करना। अगर तुम हमारी मदद न करना तो कभी भी कुफ्फार के साथ मिल करके तुम मुसलमानों से जंग न करना। यह मुआहदा हो गया था। लेकिन काब इब्न असद एक बहुत बड़ा चालाक था काफिर, वो घुसा और उसने जाकर के कबीले कुरैश के सरदार से मिला और उसने कहा कि ये काम करो, मुसलमानों को मिटाने के लिए बड़ा अच्छा मामला है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, हम लोग मुआहदा कर लिए हैं। कहा मुआहदा वाहदा तोड़ो, उधर से हम हल्ला बोलेंगे, अंदर से तुम हल्ला बोल दो, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाए, दोनों जानिब से मुसलमानों को कुचल दिया जाएगा। ये राजी हो गए क्योंकि इन्होंने मसालहत कर ली थी। सरकार को किसी तरह से इत्तला मिल गई। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से फरमाया, ये काम करो। वो हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने भेजा, जाओ जरा यहूदियों के कबीले में देखा हो मदीना कि क्या वाकई हमारे खिलाफ इस तरह तैयारी कर रहे हैं। जब ये आए देख करके तो सरकार ने बता दिया था कि जब तुम देख करके आना, अगर वाकई हमारे खिलाफ तैयारी कर रहे हैं तो इशारे से हमें बता देना, और हमारे खिलाफ तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जोर जोर से ऐलान कर देना। वाकई को बड़े गौर से सुनो, देखो सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ने हजरत साद बिन माज को भेजा, ये साद बिन माज गए तो देख करके आए और इशारे से बता दिया। सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यहूदियों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, उन्होंने असलहा जमा कर लिया है, तलवारों को सैकल कर रहे हैं, तीर और तरश सब इकट्ठा कर लिए हैं, ढालों को इकट्ठा कर लिए हैं, वो चढ़ाई का इरादा कर रहे हैं। अब मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी का सामना हुआ। अंदरूनी खलफशार अलग है, 12,000 लश्कर कुफार सामने मौजूद हैं, ये 3,000 सिर्फ हैं, बच्चों और बीवियों का मामला सामने है, मजबूर बूढ़ों का मामला सामने है। कैसी मुसीबत में मुसलमान घिर गए थे जरा देखो, लेकिन अल्लाह पर उनका भरोसा
भरोसा कितना बड़ा था। उन्होंने सोचा मेरा मुहाफिज अल्लाह है, हमारी हिफाजत फरमाने वाला रब है, रसूल कौनैन के कदमों में हम हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। सरकार की फूफी औरतों के पास थी हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने देखा कि एक यहूदी कई बार हम लोगों की तरफ आया है तलवार लेकर के, तो हजरत हस्सान को बुलाती हैं, हस्सान सुनो। वो कहते हैं क्या बात है? कहती हैं हस्सान तुम इस यहूदी को कत्ल कर दो, ये औरतों के पास आ रहा है और देख रहा है कि इनके मुहाफिज मर्द बहुत कम है, कोई नहीं है, ऐसा न हो हम पर हमला कर दे। तो हजरत हस्सान फरमाते हैं ये मुझसे नहीं होगा। कहा अरे हस्सान तुम क्या सोच रहे हो? कहा नहीं ये सरकार की फूफी, मुझसे ये नहीं होगा। जब तक हजरत सफिया कहती हैं कि मैंने एक बल्लम लिया और लेकर के मैं पीछे से जोर से मारी उस यहूदी को, जमीन पर गिर पड़ा, उसका सर फट गया, वो तड़प करके मरा। मैंने हस्सान को बुलाया, कहा हस्सान कहाँ है? कहा एक काम करो उसका सर काटो। उन्होंने कहा ये भी मुझसे नहीं होगा। वो खुद कहती है फिर मैंने तलवार ले ली और लेकर के मैं गई, मैंने उसके सर को भी काट करके फेंक दिया। यहूदियों ने देखा तो वो सब डर गए, उनकी हिम्मत औरतों की तरफ आने की नहीं हुई। उनके दिल में खौफ हिरास छा गया कि वाकई बहादुर मौजूद है औरतों के पास। हजरत सफिया के इस कारनामे से आधे यहूदी फिसल गए थे, नहीं पीछे से मुसलमानों पर हमला करने में कामयाब नहीं हो गए। चुनांचे ये तरीका हजरत खालिद बिन वलीद का बहुत ज्यादा रहता था, वो रुक रुक करके हमला किया करते थे। चुनांचे एक खबर ये भी मिली कि अब कुफ्फार जा रहे हैं वापस। हजरत खालिद ने कहा, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, कि ये खबर पहुंचा दो कि हम वापस जा रहे हैं, और जब वापस चलने लगोगे तो ये भी मुहासरा पर जो पड़े हुए हैं 3000 के लश्करी, ये भी अपने शहर को वापस जाने लगेंगे, बस पीछे से हम लोग फिर हल्ला कर देंगे, ये खंदक को हमसे पार होने से रोक नहीं सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के किनारे चल करके जायजा लिया और जायजा लेने के बाद इरशाद फरमाया कोई हटना नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि वो लोग हट गए होंगे। जब ये खंदक के करीब आए सब और अपने अपने घोड़ों को ईड़ लगाई कि हम खंदक को पार करें, तब तक इधर से पत्थर बरसने लगे और तीर जाने लगे, सब पीछे हट गए। खालिद बिन वलीद ने कहा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मजबूत जंगी तदबीर इख्तियार की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों को लिए हुए हैं। इस तरह से इन यहूदियों ने गद्दारी की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने लगे। आज भी फतह मस्जिद मौजूद है ग़ज़वे खंदक के मकाम पर, बाबू जिसको कहते हैं कि यहाँ पर फतह की दुआ सरकार ने मांगी थी, वहाँ मस्जिद बना दी गई थी, मस्जिद फतह उसका नाम है। चुनांचे आज भी हाजी जाते हैं तो जियारत करते हैं। अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार ये चंद मुसलमान हैं, मौला ये तेरे नाम का खुतबा पढ़ रहे हैं, मौला इनकी हिफाजत फरमा। दुआ सरकार की कबूल हो जाती है। इतने जोर की आंधी आई, इतने जोर की आंधी आई कि सबकी हांडियां उलट गईं, उनके घोड़े इधर उधर हो गए। अबू सुफियान ने कहा भागो, अब इस आंधी का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, 1 महीना हो गया है, हम मुहासरा तोड़ते हैं। अबू सुफियान भागे, इतने जोर से अबू सुफियान भागे कि अपने सारे सामान को भी नहीं उठाया। जब लोगों ने देखा हमारे लश्कर का सरदार जा रहा है तो सारे लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, सब भाग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी कौनैन ने अपने जानिसारों को फरमाया देखो कुफ्फार सब सुबह सुबह क्या किए, सब देख करके आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सारे कुफ्फार भाग गए, कोई नहीं है, मुहासरा टूट गया, उनके कुछ सामान छोटे हुए हैं, पार करके खंदक को उनके सामानों को उठा लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगे अपने सहाबा को लेकर, तब तक हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अपने जानिसारों को लेकर के इतनी जल्दी खंदक के पास चले आए और हम फरिश्तों की जमात को लेकर के रौहा तक कुफ्फारों को दौड़ाते रहे हैं, वहां तक हमने खेत करके उन्हें कर दिया है। ये है अज़ाब इलाही, ये है रब की तरफ से नुसरत, ये है रब की तरफ से मदद। ये सब भागे, मदीना पर भाग गए, मदीना को छोड़ करके भाग गए। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो, अब कभी भी कुफ्फार मदीना की तरफ चढ़ाई नहीं करेंगे, ये इनकी आखिरी जंग थी चढ़ाई करने के लिए, हरदम ये इब्तिदा करते थे। अब जब जब ये लड़ाई का इरादा करेंगे तो हम चढ़ाई इन पर करेंगे। रसूलुल्लाह ने ये भी गैब की खबर अता फरमा दी। सहाबा खुश हो जाते हैं, सारे लोग खुशी खुशी वापस आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अपने अपने घरों को चले गए, इधर उधर सब हो गए। अल्लाह के रसूल बैठे ही थे कि तब तक हजरत जिब्रील आए और हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बैठे ना। जिब्रील तब आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है कि कबीले कुरैश के जितने यहूदी हैं सबको कत्ल कर डालो, किसी को छोड़ा ना जाए। या रसूल अल्लाह इसी वक्त आप जंग के लिए तैयारी फरमा दीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान कराना शुरू कर दिया। अभी बात सहाबी अपने घर पर भी नहीं पहुंचे थे कि नबी का मुनादी ऐलान कर रहा है, ए लोगो उठो उठो जल्दी करो, रसूलुल्लाह के पास चलो। सारे लोग थोड़ी देर में अल्लाह के हबीब के पास जमा हो गए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा इतनी तेज चलो और इस तरह सफर करो कि कबीले कुरैश के मोहल्ले में पहुंच करके असर की नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सब चल पड़े। जैसे पता चला उन कबीले कुरैश के यहूदियों को, उन्होंने अपने मोहल्ले का दरवाजा बंद कर लिया। एक किला था, उस किले में महसूर हो गए, किसी तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया। अल्लाह के रसूल ने मुहासरा डाल दिया और मुहासरा जब डाला तो किले की दीवारों पर चढ़ करके यहूदी गाली देने लगे, इधर से तीर और पत्थर की बारिश होने लगी। एक ने कहा, मोहम्मद आपने हमारे साथ वादा खिलाफी किया। सरकार ने फरमाया, नादान सबसे पहले तुमने वादा खिलाफी की है, सबसे पहले मुआहदा को तूने तोड़ा है। हम तो कुछ मुशरिकीन के साथ पैकरे जंग थे और तुम सब लोगों ने अंदरूनी खलफशार मचा करके मुसलमानों को नीस्तनाबूद करने की कोशिश की है। बताओ तुम्हारी तलवारें अभी चमक रही थी कि नहीं? बताओ तुम्हारे पास असलहा इकट्ठा हुए थे कि नहीं? साद बिन मुआज़ निकलो और बताओ इन लोगों को। हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े होकर के कहते हैं, अब तुम्हारी गद्दारी का सबक तुम्हें दिया जाएगा। तुम लोगों ने मुसलमानों को कमजोर समझा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जबरदस्त मुहासरा फरमाया कि इन लोगों के खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया, कोई निकलने की कोशिश नहीं कर पाता था। चुनांचे उनके बड़े बड़े सरदार निकले और निकलने के बाद आए, कहा, मोहम्मद हमें छोड़ दो। कहा, छोड़ा नहीं जाएगा तुम्हें, हमें माफ कर दो। कहा, नहीं, माफी का परवाना अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुमने गद्दारी क्यों की है? चूंकि रब का हुक्म था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, देखो ये किस किस तरह से चालें चल रहे हैं। बने मुज़ैर और दूसरे कबीलों को हमने छुटकारा दे दिया था, वो मदीना छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने साजिश करके 12,000 काफिरों को इकट्ठा करके हम पर चढ़ाई कर दी थी। फिर अगर इन्हें छोड़ दिया जाता है तो फिर ये जालिम चाल करेंगे और ये फिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएंगे। मुहासरा हटाना नहीं है। चुनांचे उनके पूरे मोहल्ले को, किला को घेरे में मुसलमान लिए हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। इधर से तीर और पत्थर बरसाए जाते हैं। वो बिल्कुल मजबूर हो गए तो निकल करके आए। कहा, अब आप हमारे साथ क्या करेंगे बताइए? कहा, तुम्हारे सारे जवान हमारे कब्जा में आ जाएं, हम उन्हें कत्ल करेंगे और औरतों को कनीजा बना लिया जाएगा, बच्चों को ले लिया जाएगा, तुम्हारा माल मता सब कब्जा कर लिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। इन लोगों ने कहा, कोई चारा नहीं है। कहा, कोई चारा नहीं है। मजबूर हो गए, सबों ने अपने आप को सरकार के हवाले कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद अब फैसला सुनाया सरकार ने, क्या किया जाए इनके साथ। उन लोगों ने कहा, मोहम्मद हमें माफ कर दो। कहा, हम अपना फैसला तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारे ही कबीले के साद बिन मुआज़ हैं, उनका फैसला मानोगे? हजरत साद के नाम को सुनकर के इन लोगों ने कहा, हाँ हम उनके फैसले को मान लेंगे, वो हमारे कबीले के हैं, पहले इस्लाम ला चुके थे। गज़वे खंदक के मौका पर हजरत साद बिन मुआज़ को तीर लग गया था और उनके पैर में बहुत ज्यादा जख्म हो गया था। मरहम पट्टी मस्जिद नबवी में हो रही थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ साद बिन मुआज़ को बुला लाओ। साद बिन मुआज़ आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो साद बिन मुआज़ तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। वो सबके सब खड़े हो गए। हजरत साद बिन मुआज़ के आने पर आपने फरमाया, तुम्हारी कौम के सरदार आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। पता ये चला कि अगर कौम का सरदार आ रहा है और उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाया जाए तो यह बिदात नहीं है। नबी कौनैन ने हजरत साद बिन मुआज़ के लिए कौम को फरमाया था, तुम्हारी कौम के सरदार आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। आज खड़े होने को बिदाती करार दिया जा रहा है। नबी के नाम पर अगर खड़े होकर कोई सलाम पढ़ लिया, यह बिदातियों का तरीका है, यह बिदातियों का तरीका है। हालांकि यही लोग जाते हैं गुंबद खजरा के सामने, मदीना तैयबा में तो खड़े होकर सलाम पेश कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ तो सरकार हमारे सामने हाजिर है, हम सामने सलाम कर रहे हैं। नादान बैठो बैठो सलाम कर ले, खड़ा क्या होता है नबी के सामने। हमारा अकीदा ये है कि नबी जैसे गुंबद खजरा से हमें देख रहे हैं, ऐसे हर जगह से नबी हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं। नबी की निगाह से कोई उम्मती पोशीदा नहीं है। हम नबी पर जब सलाम पढ़ते हैं तो अदब का तकाजा यही है कि मर्जी जब होती है खड़े होकर पढ़ते हैं, मौका होता है बैठ करके पढ़ते हैं, मौका होता है मस्जिद में पढ़ते हैं, मौका होता है महफिल में पढ़ते हैं, मौका होता है अपने बिस्तर पर बैठे बैठे पढ़ते हैं, मौका होता है हम मुसल्ले पर पढ़ते हैं। नबी पर हम सलाम पढ़ते हैं। सलाम पढ़ने के अंदाज कई हैं, खड़े होकर के भी पढ़ो, चलते चलते भी पढ़ो, मैदान में भी पढ़ो, सफर हज़र में भी पढ़ो। सलाम को बिदात तुमने कह दी, कैसे कह दिया? यही नबी यही इरशाद फरमाते हैं, फश्शु सलाम, सलाम को खूब खूब फैलाओ। नबी तो सलाम को फैलाने के लिए कह रहे हैं, एक दूसरे को सलाम खूब फैलाओ किया करो। अगर नबी पर सलाम भेजा जाए तो बिदात का फतवा कैसे लगता है? जालिम अगर नबी पर सलाम पहला बिदात है तो अपने घर की तलाशी ले ले, कितनी बिदातों का मुर्तकिब तू दिखाई दे रहा है, कितनी बिदातें तू कर रहा है, कितने बिदातों
को तुमने वजूद में ला करके मुसलमानों का शीराजा मुंतशिर किया है। न तुम सब ने हमें देते, न फरियाद करते, न खूते राजे सरबस्ता, न यूं सवाइया होती। आओ हम तुम्हारे घर की बात बताने के लिए तैयार हैं। बताने तुम्हारे घर में कैसी कैसी दौलतें मौजूद हैं, तुम्हारे घर में कैसे कैसे कारखाने तैयार हैं। इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया इन जालिमों ने, इस्लाम की आबरू लूट ली गई गद्दारों ने, रसूलुल्लाह की मुकद्दस सीरत पर हमला करके मुसलमानों का ईमान बर्बाद कर दिया इन नालायकों ने। यही ग़ज़वे खंदक का मौका है। हज़रत साद बिन मुआज़ को रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे कौम के सरदार आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। हज़रत साद बिन मुआज़ को आका ने इरशाद फरमाया साद ये सब तुम्हारा फैसला मानने के लिए तैयार हैं, आज फैसला मैं नहीं सुनाऊंगा, साद तुम सुनाओ, इनके लिए फैसला किया जाए। हज़रत साद कहते हैं मेरी कौम के लोगों में तो मुसलमान हो गया, रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान होने की मेरी तमन्ना है, लेकिन तुम मेरा फैसला मानोगे? हाँ हम फैसला आपका मानेंगे, हमारे फैसले से नहीं फिरोगे? नहीं फिरेंगे। आप अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह हमारा फैसला यह है कि इन सबके जवानों को कत्ल कर दिया जाए, ये मेरा फैसला है। तब तक अल्लाह के हबीब फरमाते हैं साद जो तुम्हारी जबान से निकला ठीक वही हुक्म रब ने मुझे भी दिया है, रब ने वही हुक्म फरमाया है साद तुम्हारी जबान ये जबान है। अल्लाह के रसूल का फरमान देखो। अब ये सब रोने और गिड़गिड़ाने लगे। चुनांचे एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो फला बूढ़ा यहूदी है, उसके मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसने एक रोज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, सरकार उसको आप छोड़ दें। सरकार ने फरमाया बूढ़े को बुलाओ। बूढ़ा सामने आया। आका ने फरमाया जाओ तुम्हें छोड़ दिया जाता है। कहा हमें आप छोड़ दे रहे हैं? कहा हाँ। कहा तो हम अकेले रह करके क्या करेंगे? सरकार ने फरमाया जाओ तुम्हारे बीवी बच्चों सबको छोड़ दिया जाता है। उसने कहा तो हम अपने खानदान को लेकर क्या करेंगे जब हमारी दौलत नहीं रहेगी? कहा जाओ तुम्हारा माल मता दौलत सब तुम्हें वापस किया जाता है। उसने कहा अच्छा ये बताओ हमारी कौम के सरदार हुई बिन अख्तब क्या हुए? कहा कत्ल कर दिया गया। कहा क्या नाम काब बिन साद क्या हुए? कहा उसे भी मार दिया गया। कहा फला क्या हुए? कहा उन्हें भी मार दिया गया। कहा फला जवान क्या हुआ? कहा उनको भी कत्ल कर दिया गया। सच तो यहूदियों को कत्ल करके नबी कौनैन ने गढ़े में डलवा दिया था। लोग कहते हैं नबी ने कत्ल करवाया, जुल्म किया है। जालिम तो नबी की सीरत को नहीं समझ पा रहा है। ये बता कि नबी कौनैन ने जब इन पर गिरफ्त हासिल की हो तो इनको कत्ल करवाया है। अगर ये मुसलमानों पर गिरफ्त हासिल कर लेते जब कुफ्फार 12,000 आए थे तो क्या ये मुसलमानों को छोड़ देते? क्या ये मुसलमानों की जाबख्शी कर देते? कई बार यहूदियों ने नबी कौनैन के कत्ल की साजिश की और एक बार तो कामयाब भी हो जाते, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत की। रब की हिफाजत रब अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। दुश्मन का कोई हरबा कारगर नहीं हो रहा है, वरना उन लोगों ने सरकार के कत्ल में कोई ऐसा शोशा गोशा नहीं छोड़ा था कि जिसके मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दी हो। नबी कौनैन ने 700 लोगों को कत्ल करवा करके गड्ढे में डलवा दिया। आज जो लोग कह दिया करते हैं कि नबी कौनैन पत्थर सह करके दुआएं देते थे, नबी दुश्मनों को दुआएं देते थे, 700 यहूदियों को गड्ढे में कत्ल करके नबी ने डलवाया है कि नहीं डलवाया है? ये नबी कौनैन ने मारा है कि नहीं मारा है? अरे सुन, नबी उन दुश्मनों को दुआएं दे दिया करते थे जिनको दिल के देखते थे कि इसका दिल चंद दिनों के बाद साफ हो जाएगा और शफ्ताफ आईना हो जाएगा, मेरी मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। नबी माफ फरमा दिया करते थे। ये नबी का गैब है और नबी जब देख लेते थे ये अजली बदबख्त है, ये कभी भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा। नबी कौनैन हुक्म देते थे इसे सजा दी जाए, इसे मार दिया जाए। नबी की सीरत का हर पहलू मुलाजा करते जाओ। आज बड़ी ढिठाई के साथ कह दिया करते हैं कि सुबहानी साहब आप लोग तो नफरत करते हैं और नबी तो प्यार किया करते थे। नबी कौनैन हिदायत याफ्ता पर लोगों से प्यार फरमाते थे, हिदायत पाने वाले लोगों से नबी कौनैन प्यार फरमाया करते थे। देख नबी कौनैन ने किस तरह से यहूदियों को सजा दिलवाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मानने के लिए बूढ़ा तैयार नहीं। अच्छा बूढ़े यहूदी बता तेरा क्या इरादा है? कहा ए पैगंबर इस्लाम हमें भी कत्ल कर दीजिए, जहां हमारी कौम गई है हम वहीं जाएंगे। चुनांचे उसे भी कत्ल कर दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ करके खड़े हो गए, कहा नादान, अरे तू तो वहीं जाएगा लेकिन तेरी कौम जहन्नम में गई है, तू जहन्नम में जाएगा। अगर तू अज़मत रिसालत का इकरार कर लेता नबी के कदमों में आ जाता तो तू जन्नती हो जाता। देखो नबी जन्नत तो दे रहे हैं लेकिन ये ले नहीं रहा है, नबी तो आजादी दे रहे हैं लेकिन ये ले नहीं रहा है। इसने कहा मेरे बाल बच्चों को क्या होगा? आजाद कर दिया गया। मेरा मालो मता क्या होगा? नबी ने अता फरमा दिया। नबी अपने गुलाम की दिलजोई किस तरह से फरमा रहे हैं? गुलाम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह इसने मुझ पर एहसान किया है, आज उस एहसान का बदला हम देना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी जो जो कहो एहसान का बदला दे दिया जाएगा। नबी ने अपने गुलामों की सराहा, गुलामों को सराहा किस तरह से है और गुलामों को इज्जत किस तरह से दी है, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी कौनैन ने किसी के एहसान के बदले को चुका देने से गुरेज नहीं किया है, बल्कि जब किसी ने अपने एहसान का बदला मांगा है तो नबी कौनैन ने देने के लिए फौरन हुक्म दे दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबको कत्ल करवा देते हैं। यहूदियों की औरतें और उनके मालो मता को और उनके बच्चों को सरकार ने सब माले गनीमत में लिया। अब तकसीम फरमाना शुरू किया। फिर नबी का रहमो करम देखो, मेरे आका फरमाते हैं अच्छा जब इनकी औरतें बांटी जाएं और इनके बच्चे हों तो उन औरतों को बच्चों से अलग न किया जाए। सरकार फरमाते हैं
माँ और बच्चे की जुदाई गवारा नहीं है, दोनों को साथ रखा जाए, माल गनीमत तकसीम कर दिया जाता है। मदीना तैयबा अब यहूदियों से पाक साफ हो जाता है। अब मदीना में मुसलमान है, बकिया कोई नहीं है। हाँ, एक जमात और पैदा हो गई थी मदीना तैयबा में, वो जमात मुनाफिकों की थी। वो अंदर कलमा सरकार से दुश्मनी रखते थे और बाहर से कलमा पढ़ा करते थे। यही जमात रह गई है, बकिया यहूदी भी निकाल दिए गए, ईसाई भी मदीना से निकाल दिए गए। अब सिर्फ मुसलमान हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। ये सब भाग भूग करके इधर उधर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, मेरा इरादा है चलो उमरा कराया जाए। अल्लाह के रसूल उमरा के नियत से मदीना तैयबा से 1400 सहाबा की जमात लेकर के निकले और जब मक्का के करीब एक मकाम हुदैबिया है, सरकार वहां पहुंच गए तो मक्का के काफिरों को इत्तला मिल गई। मक्का के काफिरों ने अपने आदमी को दौड़ाया और वहीं पर इत्तला दे दी, कहा मोहम्मद से कह दो अगर मक्का आएंगे तो तलवारें चलेंगी, हम उनको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के रसूल सिर्फ 1400 सहाबा को लेकर के गए थे, मेरे आका जंग की नियत से नहीं गए थे, लड़ाई की नियत से मेरे सरकार नहीं गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा यह नहीं था। 1400 सहाबा को लेकर के सिर्फ उमरा करने के लिए गए थे, मकाम हुदैबिया पर ठहरे हुए हैं। तब तक अल्लाह के रसूल वज़ू फरमाने लगे। प्याले में पानी था, किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतना ही पानी है जितने से आप वज़ू फरमा रहे हैं, बकिया पीने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अच्छा। फिर मेरे आका ने वज़ू फरमाने के बाद जो थोड़ा सा पानी बचा उसमें अपने पंजे मुबारक को रख दिया। अब उंगली की हर घाई से पानी का चश्मा बहने लगा। सरकार फरमाते हैं पी लो, अपने अपने मशकीजों को भर लो, अपने अपने ऊंटे और घोड़ों को पिला दो। हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि हम 1400 करीब 1500 थे, हमारे लिए काफी हो गया वो पानी। अगर हम 1 लाख भी होते तो हमारे लिए काफी था वो पानी। ये पानी का मौजूदा उंगलियों की घाइयों से जारी होना ये मकाम हुदैबिया पर जाहिर हुआ था। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें और गुलियों की करामत अबे रहमत की है जारी वाह नकिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह। अल्लाह अल्लाह, अपने नबी को कहां कहां देखोगे, ये सीरत रसूल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर ठहर गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान इधर आओ। हजरत उस्मान सरकार के सामने जाते हैं। सरकार ने फरमाया उस्मान गनी एक काम करो, कुफ्फार मक्का से तुम्हारे मजबूत ताल्लुकात थे, आज भी वो तुम्हारा लिहाज कर सकते हैं, इसलिए एक काम करो तुम मक्का चले जाओ और बता दो काफिरों से कि हम खाने काबा की जियारत के लिए आ रहे हैं, उमरा करके हम वापस चले जाएंगे बस। हजरत उस्मान गनी फरमाने रिसालत लेकर के मक्का पहुंच गए। मक्का के बड़े बड़े सरबराउर्दा लोग आ गए, अकरमा आए, अबू सुफियान आए, जो लोग और सरदार माने जाते थे वो सब जमा हो गए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कैसे आए हो? हम अपने नबी का पैगाम लेकर के आए हैं। उस्मान तुम्हारे नबी कहां ठहरे हैं? हमारे नबी अपने साथियों के साथ हुदैबिया के मकाम पर ठहरे हैं। उस्मान क्या पैगाम लेकर के आए हो? हम तुम्हारे नबी का कोई पैगाम नहीं मानेंगे। कहा सिर्फ पैगाम इतना है कि हमारे नबी अपने जानिसारों के साथ आ रहे हैं, खाने काबा का तवाफ करेंगे और उमरा करके फिर वापस चले जाएंगे। उन लोगों ने अपनी तलवारों को फिजा में बुलंद कर लिया। कहा उस्मान सुन लो, ये हमारी तलवारें आज भी चमक रही हैं, हम अलबत्ता मदीना से भाग आए हैं मुहासरा खत्म करके, हमने बड़ी छेड़छाड़ को बंद कर दिया है, लेकिन अगर तुम समझते हो कि हमारी ताकत खत्म हो गई है तो खत्म नहीं हुई है, हम किसी कीमत पर तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को यहां दाखिल नहीं होने देंगे। हजरत उस्मान गनी को उन लोगों ने कहा उस्मान हमारे तुम्हारे दोस्ताना ताल्लुकात पुराने जमाने में थे, तुम आए हो तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, खाने काबा का तवाफ कर लो। देखो काफिरों ने खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत हजरत उस्मान गनी को दे दी, लेकिन कहते हैं हम तुम्हारे नबी को नहीं आने देंगे। अब हजरत उस्मान गनी का ईमान देखो, ईमान है इबादत करने वालों और इबादत का ढंढोरा पीटने वाले और ये नगर नगर डगर डगर चलने वाले जमात की जमात मुसलमानों का ईमान बर्बाद करने वाले, ये सुने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखा है, हजरत उस्मान गनी का कारनामा देखा है। जब काफिरों ने कहा उस्मान हम तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम खाने काबा का तवाफ कर लो, मगर हम तुम्हारे पैगंबर को नहीं आने देंगे, तो अल्लाह के रसूल से के सहाबी हजरत उस्मान गनी शहदाए रसूल इरशाद फरमाते हैं एक कुफ्फार मक्का, हमें खाने काबा का तवाफ तो जरूर अजीज है, मगर हम अपने पैगंबर को छोड़ करके नहीं करेंगे, खाने काबा का तवाफ हम नहीं करेंगे। इनकार कर दिया खाने काबा का तवाफ करने से, नबी नहीं है तो तवाफ काबा कहां है? नबी नहीं है तो इबादत कहां है? नबी नहीं है तो नमाज और रोजा कहां है? सब तो नबी की अता है, नबी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। ये सहना फिक्र हजरत उस्मान गनी ने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न शहीद आजम मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुभानी। सुभान अल्लाह। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ो, ऐसी सीरत बयान करते हो मौलवी साहब। रसूलुल्लाह को गैब नहीं था, मिलाद बिदात है, ये बिदात है, वो बिदात है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, बकिया सब कुछ नहीं, आपस में मिलकर रहो, मुल्क को बचाने के लिए सब एक हो जाओ, शीरो शकर हो जाओ। अरे जब शीरो शकर ही होना है मुल्क को बचाने के लिए तो अमेरिका की बगावत क्यों कर रहे हो? अमेरिका के सामने दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा देते हो कि हम सब एक होकर के रहेंगे, मरने के लिए तैयार नहीं है, आप हमारे आका हैं, आप जो कुछ कहें हम सब करने के लिए तैयार हैं, तो वो हमला करेगा। एक तरफ तो उसकी बगावत भी करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अखबारों में देते हुए कि बिला तफरीक मजहब मिल्लत एक हो जाओ। जरा सीरत रसूल तो तुम पढ़ो, हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा इत्तेहाद के दाई हो गए हो। हजरत इमाम हुसैन ने करबला में यजीदियों से इत्तेहाद क्यों नहीं किया था? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में यहूदियों से इत्तेहाद किया, यहूदियों ने दगा दिया, तोड़ा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कभी भी इस कौम पर भरोसा ना करना, ये कभी भी तुम्हारे साथ वफादारी नहीं कर सकती है। रसूलुल्लाह की मुकद्दस सीरत से ये सब पता चल रहा है। नबी की सीरत का ढढोरा भी पीटते हो एक तरफ, और दूसरी जानिब नबी कौनैन की तौहीन भी करते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद आई हजरत उस्मान गनी ने इनकार फरमाया, नहीं खाने काबा का तवाफ में नहीं करूंगा। किसी ने जाकर के कह दिया, असल में चमकती हुई तलवार को देखा था उन लोगों के उठाते हुए, तो किसी ने कह दिया या रसूल अल्लाह उस्मान गनी तो शहीद कर दिए गए। कहा शहीद कर दिया गया? कहा नहीं, उस्मान शहीद नहीं किए गए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गैब का इल्म मालूम होता तो उस्मान गनी की शहादत की खबर जब मिली तो नबी इनकार तो फरमा देते, तो इनकार तो फरमाया, सीरत पढ़ो। तो लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह शहादत उस्मान की हो गई तो मेरे आका फरमाते आओ वादा करो सब उस्मान का बदला लिया जाएगा। वहीं बैते रिजवान का मामला हुआ था, सबों ने अपने हाथों को सरकार के हाथ पर रख करके अहदो पामान किया कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, उस्मान गनी के खून का बदला लिया जाएगा। जब बैत हो गई तो अल्लाह के रसूल ने अपने एक हाथ को ऊपर रखा, बाएं को नीचे किया, कहा यह उस्मान का हाथ है, मैं उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूं। अब सवाल पैदा होता है कि जब उस्मान गनी कत्ल कर दिए गए तो उस्मान गनी कत्ल किए गए तो उनकी तरफ से नबी कौनैन अपने हाथ को क्यों दूसरे हाथ पर रख रहे हैं कि ये उस्मान की तरफ से बैत मैं कर रहा हूं, वादा मैं कर रहा हूं, नबी देख रहे हैं। नबी ने अपने जानिसारों की मोहब्बत का मामला बढ़ाया था और जानिसारों ने बता दिया था या रसूल अल्लाह हम इस्लाम ला करके अहद तो कर ही चुके हैं और फिर आपके हाथ पर अहद करते हैं कि कभी भी हम कुफ्फार से पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी अपने रसूल के कदमों पर कुर्बान होने से दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू सुफियान चंद आदमियों को लेकर के पहुंच गए हुदैबिया के मकाम पर। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अबू सुफियान अपने चंद आदमियों को लेकर के आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। सरकार के सामने पेश हुए, अबू सुफियान तुम क्या कहना चाहते हो? मोहम्मद मैं तमाम मक्का के लोगों की तरफ से सुलह की शर्तें लेकर के आया हूं, आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आप उसे कबूल करें। मेरे आका ने फरमाया अगर कबूल करने के लायक शर्तें होंगी तो कबूल की जाएंगी वरना नहीं। आप पेश करो। 3 शर्तों को उन लोगों ने पेश किया। आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते और 2 शर्तें रखी गई। सरकार ने देखा, तीनों शर्तों को कबूल फरमा लिया। क्या कोई बात नहीं। सरकार ने वहीं कुर्बानी की और मेरे आका ने वहीं ihram खोल दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुलहनामा लिखा जाए। जब जानबैन से सुलहनामा लिखा जाने लगा तो हजरत अली को बुलाया गया। अली अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह का लिखो। हजरत अली कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में अपने सरकार के जिस हुक्म को टाला है यही एक है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से यह सुलह। तब तक अबू सुफियान और दूसरे लोग बोल पड़े, कहा सुनिए अली आप उसमें रसूल का लफ्ज ना लिखिएगा। कहा क्यों? कहा आप लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखिए। हजरत अली फरमाते हैं मैं लिख चुका, मैं अपने हाथ से रसूल का लफ्ज नहीं काटूंगा। अड़ गए हजरत अली का, हो नहीं सकता है। अली तुम लिखो, तुम रसूल मान चुके हो, मगर हम रसूल मोहम्मद को नहीं मानते। हम रसूल मान ही लेते तो झगड़ा क्यों रहता? देखो वो काफिर है, वो कह रहे हैं कि हम रसूल नहीं मानते। अगर हम रसूल मान लेते तो हमारा झगड़ा न रहता, और ये रसूल मान करके झगड़ा कर रहे हैं। जरा अंदाज मुलाहजा फरमाइए इनकार उन काफिरों का। हजरत अली ने कहा मैं नहीं काटूंगा।
सरकार ने हजरत अली के चेहरे को देखा, फरमाया अली घेर दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरी हिम्मत नहीं है कि आपके इसमें गिरामी पर मैं कलम चलाऊं। सरकार ने फरमाया लाओ मुझे दो टुकड़ा। जिस पर लिखा जा रहा था वो सुलह का टुकड़ा सरकार के दस्ते पाक में दिया गया। आका ने अपने इसमें शरीफ को घेर दिया, सुलहनामा तैयार हुआ। सहाबी की मोहब्बत मुलाहजा करो, उनको यह गवारा नहीं है कि मेरा कलम चल चुका तो उस कलम पर फिर उस नाम पर कलम चलाया जाए। अबू सुफियान चले गए, सरकार वहीं से वापस आ गए। ये लोग अपना गए, मक्का में जो कुछ करना कराना था करने लगे। मेरे सरकार मदीना तैयबा फिर वापस आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवाह और दूर दराज के मुल्कों में अपने अपने मकतूब को भेजा था, इस्लाम की दावत पेश की थी। चुनांचे एक बहुत बड़ी जंग का मामला फिर सामने आने वाला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको पता लगाते रहे। चंद दिन के बाद सरकार क्या देखते हैं कि खालिद बिन वलीद आ गए मदीना में। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि एक रोज ये मक्का में थे, सवेरे सवेरे उठे और उठ करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलने के लिए अपने दोस्तों में ऐलान कर दिया। लोगों ने कहा खालिद कहां जा रहे हो, क्या हो गया? कहा मैं मोहम्मद के कदमों में जा रहा हूं। हजरत खालिद बिन वलीद मदीना तैयबा पहुंच करके इस्लाम कबूल फरमा लेते हैं। कई बड़े बड़े लोग आकर के मदीना शरीफ, मक्का शरीफ से मदीना तैयबा पहुंचे, इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का वालों को बड़ी तशवीश होती थी, वो हर साइड पर पाबंदी लगाए हुए थे, कोई देखो पता चले कि मदीना की तरफ जा रहा है तो फौरन उसको रोका जाए। लेकिन लोग चुपके चुपके मक्का से मदीना की तरफ चले आते, सरकार की बारगाह में हाजिर होकर कलमा पढ़ लेते। दूसरे कबीले के लोग भी आते, कलमा पढ़ लेते। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अचानक सहाबा में ऐलान करा दिया। मेरे सरकार के इस ऐलान को सहाबा सुन करके दंग रह गए। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सब तैयार हो जाओ, चलो मक्का फतह करने के लिए। मेरे सरकार ने, ये पहली जंग है जिसमें मेरे आका ने सबसे पहले सहाबा को हुक्म दिया था सब आ जाओ तैयार होकर के। सब तैयार हो गए, 10,000 कमोबेश सहाबा इकट्ठा हो गए। निजाम परवरदिगार देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा को लिया। मेरे सरकार 10,000 सहाबा को लेकर के मक्का की तरफ रवाना हुए। ये लोग जो हुदैबिया के मकाम पर सुलहनामा लिखवा करके गए थे, उस सुलहनामा को खाने काबा की चौखट पर टांग दिया था। लेकिन चंद दिन ही गुजरे थे, चंद साल, कि उस सुलहनामा को दीमक ने खा लिया। वो सुलहनामा खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब अपने जानिसारों को लेकर के मक्का की तरफ चल पड़े। जब पता चला अबू सुफियान को कि मोहम्मद अपने फौजियों को मक्का की तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो एक वाकया और पेश आया था। किसी ने बता दिया था मक्का में जाकर के कि मोहम्मद बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे खुद नहीं पता था। मैं अपनी बेटी हजरत आयशा के पास गया, मैंने कहा आयशा, अर्ज करती हैं हाँ अब्बा। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जंग की तैयारी कर रहे हैं? अर्ज करती अब्बा ये तो मुझे नहीं मालूम है, अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है आयशा तलवार दुरुस्त कर दो, सामान दुरुस्त कर दो, हुक्म तो दिया है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल के जाने का इरादा कहां है। इस राजदारी के साथ मेरे सरकार ने सहाबा को इकट्ठा किया। अबू सुफियान आकर के मदीना में पहुंच गए। कुफारा ने मक्का ने कहा कि दीमक ने सुलह को खा लिया, एक काम करो। अबू सुफियान कहा तुम मदीना चले जाओ और मोहम्मद से हुदैबिया की सुलह का इआदा कर लो, दोबारा सुलह कर लो। अबू सुफियान दोबारा सुलहनामा को दुरुस्त करने के लिए मक्का से मदीना आए। हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौजियत में थी। सुफियान की बेटी सरकार की बीवी हैं। ये सुफियान डायरेक्ट अपने बेटी के घर आए। जैसे पहुंचे दरवाजा पर दाखिल हुए, बेटी ने अपने बाप को देखा, बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर अबू सुफियान बैठना चाहते थे कि तब तक हजरत उम्मे हबीबा उठी और उन्होंने बिस्तर को समेट दिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी कहां? कहा मैं तेरा बाप हूं। कहा मैं आया था तो तुझे तो बिस्तर बिछाना चाहिए, तूने बिस्तर को लपेट दिया। क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो बेटी का जवाब जरा देखो मोहब्बत रसूल में। आज आपके सीने के अंदर है ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह के रसूल के दुश्मन के ताल्लुक से इस तरह नफरत की बेजारी जाहिर करो।
इस तरह से तुम्हारे अंदर ईमानी जुरातो हिम्मत हो। अगर ईमानी जुरातो हिम्मत इस तरह से नहीं है तो दावा दे इश्क है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तुम्हारे लिए आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं। रसूलुल्लाह के बिस्तर को आपने उलटते हुए फरमाया अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और तुम मुशरिक हो, नापाक हो, नापाक को रसूलुल्लाह के बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं है। जरा गौर फरमाइए, बेटी को बाप से कितना प्यार होता है। बच्ची अपने बाप को, अपने मैके की चीज को पाले तो किस तरह मोहब्बत की निगाहों से देखती है। मुसलमान औरतें जहनो फिक्र लें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में है अपने बाप की मोहब्बत को ठोकर मार दिया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान हो गई। ये मिजाज है। अबू सुफियान मायूस होकर के वापस होने लगे। बहुत चिरौरी मिन्नती अबू सुफियान ने कराई। सरकार की बेटी हजरत फातिमा के पास गए, हजरत अली के पास गए, बड़ी चिरौरी की कि अपने बाप से कह दो फातिमा सुलह कर लें, हम तुम्हारे लिए बेटी जो कहो करने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा कि हसन से कहो, सरकार के नवासे हैं। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया हसन से कहने की जरूरत क्या है, वो बच्चे हैं, मामलात को बच्चे क्या जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया है तो तुम्हारी सिफारिश कोई नहीं कर सकता है। अबू सुफियान तुम्हारे लिए आफियत यही है कि तुम वापस चले जाओ। मायूस होकर के अबू सुफियान मदीना तैयबा से वापस आ गए। फिर इन लोगों ने क्या काम किया, हजरत अब्दुल्ला, हजरत मसूद इब्ने उरवा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ देखाओ मदीना में मोहम्मद का हाल क्या है। तो जब ये आए मदीना तैयबा में तो सहाबा मस्जिद नबवी में जमा थे। अल्लाह के रसूल उजू फरमा रहे थे। इन्होंने अपने घोड़े से उतर करके जब सरकार को देखना चाहा तो देखते क्या हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चुल्लू में जो पानी लेकर के उजू फरमाते हैं उस पानी को उनके जानिसार जमीन पर नहीं गिरने देते, रोक लेते हैं उस पानी को और रोकने के बाद पीते हैं अपने चेहरे पर और जिस्म पर मलते हैं। मौलवी साहब कुरान में कहां आया है कि रसूलुल्लाह जब उजू करें तो उनका पानी जमीन पर ना गिरने दो, उसको पी लो? जरा बताइए तो हमें, कुरान में है कहीं? सहाबा ये क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल से जो पानी लग जाए उस पानी को लेकर पीते हैं, अपने जिस्मों पर मलते हैं। क्या समझ करके मलते हैं? बल्कि यहां तक रवायत मौजूद है कि जिसको पानी नहीं मिलता है वो दूसरे के हाथ की तरी को लेकर के अपने चेहरे पर मल लिया करता है कि ये पानी रसूलुल्लाह के जिस्म से निस्बत कर गया। एहतराम रसूल जरा मुलाहजा फरमाओ। मेरे सरकार जब थूकते हैं तो हजरत मसूद उरवा फरमाते हैं तो मैंने देखा कि उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता बल्कि उनके जानिसार अपने हाथ पर रोक करके और अपने चेहरे पर मलते हैं। वापस चले गए। मक्का वालों ने कहा क्या हाल है? कहा हाल तो बहुत बेहतर है, मैंने बड़े बड़े दरबारों को देखा, मेरी राय यह है कि मोहम्मद से जंग ना करो, सुलह कर लो या तो उन पर ईमान ले आओ। कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? कहा हमारा दिमाग नहीं खराब है, सुनो, मैंने देखा है मदीना में उनसे मोहब्बत करने वालों को उनके जिस्म का लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने पाता है तो उनका खून वो कब जमीन पर गिरना पसंद करेंगे। इसलिए जिस कौम को अपने रहबर से इतनी मोहब्बत हो उस कौम से कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती है। अपने आका की मोहब्बत जरा मुलाहजा करो, पेश करो सहाबा जैसा जौहर। हजरत इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि ए इमाम ये बताओ कि सहाबा सरकार से कैसी मोहब्बत करते थे? तो हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर तुम सहाबा की मोहब्बत को देखते सरकार से तो उनको दीवाना कहते और वो तुम्हें देख लेते सहाबा तो तुम्हें काफिर कहते। ये दीवानगी का आलम था सहाबियों का, ये मोहब्बत का मामला है सहाबियों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे सरकार 10,000 लश्कर लेकर के काबा की तरफ चले हैं, मक्का फतह करने के लिए चले हैं। अबू सुफियान को पता चल गया, ये फिर चल पड़े। आए या आ ही रहे थे कि हजरत अब्बास सरकार के चचा मिल गए जो सबसे पहले कलमा पढ़ चुके थे। अबू सुफियान से मुलाकात हुई। सरकार के चचा ने कहा अबू सुफियान फिर कैसे आए हो? कहा अब्बास मैं फिर हालात का जायजा लेने आया हूं, मुझको मक्का के लोगों ने बैठने नहीं दिया। हजरत अब्बास ने कहा अबू सुफियान अब आफियत इसी में है कि कलमा पढ़ लो। हजरत अब्बास ने बहुत समझाया। कहा अब्बास तुम हमें दिखा दो कि तुम्हारे रसूल के दीवानों का हाल क्या है। हजरत अब्बास अबू सुफियान को कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे रहो। आ रहे थे कि सहाबा की जमात में से किसी ने देख लिया और कहा वो देखो रसूलुल्लाह का दुश्मन सुफियान तो यही आ गया है, अब इसको छोड़ना नहीं है। हजरत अब्बास फरमाते हैं खबरदार कोई करीब ना आएगा, मैंने इनको अपने अमन में ले लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुफियान हाजिर होते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को देखते हैं। थोड़ी देर तक बहस होती है।
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जरा अंदाज देखो, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान मक्का के तमाम लोगों के सरदार इस वक्त माने गए हैं, इनके लिए कोई एजाजी जुमला आप फरमा दें, इख्तिदार पसंद है, इनकी इज्जत अफजाई कुछ आप फरमा दें। अल्लाह के रसूल जब अपने लश्कर को लेकर के चलने लगते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे लश्करियों, अबू सुफियान के घर में जो घुस जाएगा उसे भी अमान है, अबू सुफियान का नाम जो ले लेगा उसे भी अमन दे दिया जाएगा। अबू सुफियान ये इज्जत पा करके बहुत खुश हुए, लेकिन अभी सबको इल्म नहीं हुआ कि अबू सुफियान इस्लाम लाए हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने लश्करियों से, अपने शहदाइयों से फरमाया कि ये काम करो, मक्का बिल्कुल करीब है, आज रात यहीं पड़ाव करो और सारे लोग अलग अलग आग रोशन करो, चूल्हा जलाओ। सारे लोग जलाने लगे। अब जब इधर से लोगों ने देखा तो कहा, ओहो, इतनी भारी फौज लेकर के मोहम्मद आ रहे हैं, अब उनसे तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। रब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने सारे लोगों को चलने का हुक्म दिया तो हर कबीले का झंडा अलग अलग था। सरकार ने फरमाया पहले ये कबीला जाए, फिर इस कबीले का सदर जाए, फिर ये कबीला झंडा लेकर आगे बढ़े। और हजरत अब्बास से कहा कि तुम एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के अबू सुफियान को खड़े हो जाओ और अबू सुफियान देखते रहे। हजरत अब्बास लेकर के किनारे इनको खड़े हो गए। इस्लामी मुजाहिदीन गुजर रहे हैं, अबू सुफियान की निगाह देख रही है। अबू सुफियान पूछते हैं, अब्बास ये किस कबीला के जवान हैं? फला कबीला के लोग हैं। वो कबीला गुजर गया। अब्बास ये कौन लोग हैं? फला लोग हैं। अब्बास ये कौन लोग हैं? फला लोग हैं। अब्बास अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? तब तक मेरे आका रिसालत और नबूवत का ताज लिए हुए मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं। अबू सुफियान ने देखा तो कहा, अब्बास तुम्हारे भतीजा तो बादशाह लग रहे हैं। तब तक अब्बास ने कहा, अबू सुफियान अभी भी तुम्हारे ज़हन फिक्र से वो बात नहीं गई, वो बादशाह नहीं है, ये रसूलों के इमाम हैं, ये सैयदुल मुरसलीन हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब मक्का के काफिरों को पता चला तो सबों ने अपनी तलवारों को जमीन पर रख दिया। हजरत अकरमा और चंद और बहादुर एक कोने से मुसलमानों पर और चंद उजड़ किस्म के लोग हमला आवर हुए, तैयारी कर लिए थे पहले से। सरकार ने सबको मना कर दिया था कि जो तलवार रख देगा उस पर न हाथ उठाना, जो घर में घुस जाएगा उस पर न हाथ उठाना, औरतों को न कत्ल करना, किसी बच्चे को न मारना, किसी बूढ़े को न मारना, जो पनाह मांगेगा पनाह दे देना, जो अबू सुफियान के घर में घुसेगा पनाह हो जाएगा, जो अबू सुफियान का नाम लेगा उसे पनाह मिल जाएगा। रसूलुल्लाह ने ये हिदायतें दे करके अपने फौजियों को दाखिल होने के लिए हुक्म फरमा दिया। एक तरफ से हजरत अली दाखिल हो रहे हैं, एक तरफ से दूसरे लोग दाखिल हो रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जिस तरफ से दाखिल हुए थे और हजरत अली जिस तरफ से दाखिल हुए थे उसी तरफ अकरमा वगैरह थे। थोड़ी सी जंग होती है, एक दो शहादत होती है, बकिया सब भाग जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया कि उस कोने से हरम के तलवारें चमक रही हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अली जाकर के देखो। आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चंद उजड़ किस्म के लोग थे, उन्होंने तलवारें निकाल ली थी तो खालिद बिन वलीद ने दिफा किया है और उन सब लोगों को हटा दिया है। सारे लोग चले गए। अबू जहल के लड़के अकरमा मक्का छोड़ करके भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, हम मोहम्मद पर कामयाब नहीं हुए तो हम मोहम्मद का चेहरा नहीं देख सकते हैं। वो यमन की तरफ भागते चले जा रहे हैं। अकरमा भाग गए, कई लोग इधर उधर भाग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाबुल फतह, जहां आज मक्का शरीफ में लिखा हुआ है, हाजी लोग जाते हैं जानते हैं, लिखा हुआ बाबुल फतह, उसी रास्ते से मेरे सरकार खाने काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और नबी आयत करीमा तिलावत कर रहे हैं। जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, आया हक और मिटा बातिल, बातिल को मिटना ही था। नबी कौनैन खाने काबा में जाते हैं और जाने के बाद सरकार ने मुलाहजा फरमाया, ये बुत रखा है, ये बुत रखा है, ये बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, अली आ जाओ। हजरत अली गए। सरकार ने तोड़ तोड़ करके एक एक बुतों को फरमाया बाहर फेंको। सारे बाहर फेंके जा रहे हैं। एक बुत ऊपर था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली इसे तुम तोड़ो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमारे दोषे मुबारक पर हो जाएं, आप अपने असा से मार दें, टूट जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अली तुम मेरे बोझ को नहीं उठा सकते हो, आओ मैं तुम्हें सहारा दे देता हूँ। नबी कौनैन ने हजरत अली को सहारा दिया। हजरत अली ने उसे तोड़ दिया। सारे खाने काबा को बुतों की आलाइशों से पाक किया गया। एक पत्थर को सरकार ने निकाला, वो जन्नती पत्थर हजरे असवद है। रसूलुल्लाह ने उसे रख दिया, वो जन्नती पत्थर है, उसकी जियारत की जाती है, चूमा जाता है। रसूलुल्लाह ने चूम लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा को पाक साफ कर चुके तो मेरे आका 2 रकात नमाज अदा फरमाते हैं और नमाज अदा फरमाने के बाद अपने फूफी के घर तशरीफ ले जाते हैं। फरमाते हैं कि लाओ कुछ खाने के लिए सामान है कि नहीं। आपकी फूफी कहती है, मुझे शर्म आई, मेरे घर में रोटी के चंद टुकड़े सूखे हुए थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही सूखे हुए टुकड़े रोटी के
हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ पानी लाओ। उस पानी में सरकार ने रोटी को भिगोया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर रहे हैं, सारा मक्का कब्जा में आ गया है, खाने काबा के बुतों को साफ फरमा दिया है। मेरे रसूल सूखी हुई रोटी तनाउल फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह के कनात वाली जिंदगी को मुलाहजा फरमाओ। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कुल जहान मिलको जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की क़नात पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाते हैं कहाँ है उस्मान बिन तलहा, उनको बुलाओ। उस्मान बिन तलहा वो हैं जिनके पास काबा की चाबी रहा करती थी। जब रिसालत नबुव्वत का मेरे आका ने ऐलान फरमाया था तो मक्का ने एक रोज उस्मान बिन तलहा से कहा ए उस्मान ये चाबी हमें दे दो, आज मैं काबा खोलूंगा। उस्मान ने कहा उस्मान बिन तलहा ने चाबी आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा सुन ले, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी, उस वक्त तू मेरा मुहताज होगा। रसूलुल्लाह बशारत दे रहे हैं। मेरे सरकार ने बुलाया उस्मान बिन तलहा आओ। जब सामने आए फरमाते चाबी लाओ, कदमों में डाल दिया। आका ने फरमाया देख उस्मान मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि एक रोज ये चाबी मेरे कब्जा में आएगी, मैं जिसे चाहूंगा दूंगा। उस्मान देख फिर मैं तुझे ये चाबी दे रहा हूं, अब ये चाबी तेरे खानदान में नस्लन बादा नस्लीन रहेगी। ये चाबी तेरे खानदान से वही लेगा जो जालिम होगा। अल्लाह के रसूल ने बशारत दे दी और चाबी वापस फरमा दिया। नबी कौनैन खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जब खाने काबा से बाहर आए और मक्का के गिरदे नमाज का जायजा लेना शुरू कर दिया तो बच्चे अपने माओ की गोद से उछल पड़े। कहा नबी को दिखा दो जिन्होंने रहमो करम का ऐलान कर दिया है, उस नबी की हम जियारत करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपनी तलवार को चमकाते हुए कहा था ए अबू सुफियान ए मक्का के काफिरों, आज हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारे साथ क्या सुलूक होता है। तुम्ही लोगों ने हम लोगों को निकाला था। ये सारे जो और बच रहे हैं अपने अपने घरों को जाते हैं, अपने घरों का जायजा लेते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके सहाबी इस तरह से कह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐसा मत कहो, अल-यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। मैंने सबको माफी का परवाना दे दिया है, जितने मुखालिफिन है सबको मैंने माफ कर दिया है। अब घरों के दरवाजे खुल रहे हैं, औरतें बाहर निकल रही हैं, बच्चे माओ की गोद से उछल रहे हैं। ये रसूलुल्लाह जा रहे हैं जियारत कर लो, ये नबी जा रहे हैं जियारत कर लो। यही रसूल है जो रात की तारीकी में अपने वतन मक्का को छोड़ करके मदीना गए थे, आज फिर यही वापस आए हैं। हमने तो समझा था कि इतनी भारी लश्कर को लेकर के आए हैं, हमारी औरतों को तोहफे किया जाएगा, बच्चों को मार दिया जाएगा, हमें कुर्बान कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। मगर माफी का ऐलान हो गया है, हर जवान को छोड़ दिया गया, हर बूढ़े को छोड़ दिया गया, सबको माफी का परवाना दे दिया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया अली 8 ऐसे आदमी हैं या 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें जहां भी पाओ उन्हें कत्ल कर देना, उन्हें माफी का परवाना नहीं है। कहां है वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह ने इस तरह से माफी का परवाना दिया है। खुदा की कसम रसूलुल्लाह के 2 तरह के दुश्मन थे। एक वो दुश्मन थे जो रसूलुल्लाह के मिशन के दुश्मन थे, वो तौफीक इलाही से तौबा कर लेते हैं, रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया। और एक वो थे जिन्होंने रसूल के इस्लाम के खिलाफ भी बगावत की थी और मेरे आका को जिस्मानी अजियतें भी दी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। चुनांचे पकड़ा जाता है एक दुश्मन को, वो खिलाफे काबा से छुपा हुआ था। लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये अमन अमान का घर है, ये दारुल अमन है, हरम शरीफ में कत्ल जायज नहीं है, खून बहाना जायज नहीं है। या रसूल अल्लाह जिस मुखालिफ को आपने मारने के लिए कहा है वो काबा के खिलाफ के पास छुपा हुआ है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं पकड़ो उसको, वहीं पर कत्ल करो। पकड़ा जाता है और उसे कत्ल किया जाता है हतीम और जमजम शरीफ के करीब में। चुनांचे उससे खून की छींटें खिलाफे काबा पर पड़ती है, काबा की दीवारों पर पड़ती है। रसूलुल्लाह ने जहां पर माफी का ऐलान किया था वहीं पर इन बदबातिन गुस्ताखों को नबी ने कत्ल का भी हुक्म दिया था, रसूलुल्लाह ने मारने का भी हुक्म दिया था। अपने नबी को मुलाहजा फरमाओ, मक्का फतह हो गया है, कुरान की आवत ज़बान अक़दस पर जारी है, तिलावत फरमा रहे हैं इंजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, आया हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिटना ही है। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतह मक्का का मामला। मेरे सरकार मक्का शरीफ को फतह करने के बाद मक्का में कितने रोज तक ठहरे रहे? किसी ने कहा 22 रोज तक ठहरे रहे, किसी ने कहा 19 रोज तक ठहरे रहे, किसी ने कहा 18 रोज तक ठहरे रहे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ठहरे रहे। लेकिन एक बात और बता दूं, आज जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उन्होंने हरम शरीफ में नहीं बल्कि मदीना शरीफ में देखा होगा कि एक सुतून है जिसको कहते हैं सुतून तौबा, एक खंभा है। ये मामला क्यों पेश आया था? सरकार के एक जानिसार सहाबी हजरत लुबाबा थे। हजरत लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक मरतबा मैंने वही यहूदी बनु कुरैज़ा के ताल्लुक से सोच लिया कि अल्लाह के रसूल इन लोगों को कत्ल का हुक्म दे
देंगे। कहते हैं मेरे दिल में सिर्फ इतनी सोच आई थी, बस मुझको नदामत हुई, मैंने अपने नफ्स को ललकारा, ए नफ्स अल्लाह के रसूल के इस फैसले पर तू एतराज करता है। चुनांचे हजरत बाबा सरकार के सामने शर्म से हाजिर नहीं हुए, बल्कि जाते हैं मस्जिद नबवी में, एक सुतून में अपने आप को बांध लेते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, लो बाबा ने अपने आप को पता नहीं सुतून से क्यों बांध लिया है, वो रो रहे हैं। सरकार गए, फरमाया लो बाबा क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो जुर्म मैंने किया हो मैं आपसे अर्ज नहीं कर पाऊंगा। आका फरमाते आखिर बता तो तेरा मामला क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सिर्फ अपने दिल में इतना ही सोचा था कि अल्लाह के रसूल इन यहूदियों को कत्ल का हुक्म देंगे, सिर्फ इतना ही मामला मेरे दिल में आया था या रसूल अल्लाह। मैं इस शर्म और नदामत से अपने नफ्स को मलामत कर रहा हूं कि मैंने रसूलुल्लाह के फैसले पर ऐसा क्यों कहा, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे आका फरमाते हैं ए अबू लबाबा, तू अगर मेरे पास आ जाता और इस बात को कहता मैं तेरे लिए रब की बारगाह में मगफरत की दुआ मांगता, लेकिन अच्छा जब तूने इस तरह से माफी का परवाना चाहा है कि रब मुझे जब तक नहीं माफ करेगा मैं इस खंभे पे अपने आप को जुदा नहीं करूंगा। उनकी बीवी खाना ला करके दे देती थी, वो और रोते रहते थे, रात की तारीकी है रो रहे हैं, दिन का उजाला है रो रहे हैं, रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। जरा जुमले पर गौर फरमाओ। हज़रत बाबा के ज़हन फिक्र में सिर्फ एक जुमला आया था कि नबी यहूदियों को कत्ल का हुक्म देंगे, कत्ल का हुक्म देंगे, इतना ख्याल आया तो सहाबी अपने आप को खंभे से बांध रहे हैं। और वहाबी को जरा देखो कितनी गुस्ताखी कर रहा है। मोहम्मद है किसी चीज का इख्तियार नहीं, इन्हें गैब नहीं है, इनको इख्तियार नहीं है, तो अपने दिल में कितने ख्यालात को ला रहा है, तो अपने खैर मना। सहाबी के दिल में सिर्फ इतना ख्याल आ रहा है, तौबा कर रहे हैं। 6 रोज तक वो खंभे से बंधे रहे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में सरकार कयाम पजीर थे, शब्बाश थे, रात की बारी हमारे घर में थी। एक रोज अल्लाह के रसूल सवेरे सवेरे मुस्कुराने लगे। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आका इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे सलमा, उम्मे बाबा की तौबा को रब ताला ने कबूल फरमा लिया है। तब आयत पर्दा की नाजिल नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं हजरत उम्मे सलमा या रसूल अल्लाह मैं तो बाबा को बता दूं? सरकार फरमाते हाँ बता दो। तो फरमाती हूं मैं हुजरे के दरवाजा पर निकल आई और मैं खड़ी होकर के लुबाबा को देखने लगी। मैंने पुकारा ओ लुबाबा, अल्लाह के रसूल को खुशखबरी मिली है, तेरी तौबा रब ने कबूल फरमा दिया। इतना सुनना था, सहाबा नारा लगाने लगे और दौड़ पड़े, लुबाबा की बंधन को खोल दो, लुबाबा की गिरफ्त को खोल दो। लुबाबा ने कहा मेरे बंधन को कोई नहीं खोलेगा, मेरे बंधन को अगर खोलेंगे तो मेरे आका खोलेंगे, आजाद फरमाएंगे तो सरकार आजाद फरमाएंगे। फिर सरकार हुजरे मुकद्दसा से निकले हैं और लुबाबा के बंधन को खोला है, आजाद फरमाया है। इस सहाबी की मोहब्बत है। चुनांचे जिस जगह हजरत बाबा की तौबा कबूल हुई थी, जब मस्जिद नबवी शरीफ तामीर होने लगी तो उस जगह पर एक सुतून तामीर कर दिया गया था, उसको सुतून तौबा कहते हैं। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में वो खंभा पाया जा रहा है, जियारत कर लो, वहां पर अपने गुनाहों से तौबा और माफी के दुआ मांग लो। आज भी हुज्जाज किराम का यह तरीका है। मेरे सरकार ने मक्का फतेह फरमाया है, सरकार फातिह मक्का है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं, लोग जूक दर जूक आ रहे हैं, फौज दर फौज आ रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, औरतें आ रही हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कबीले के लोग आ रहे हैं, वो सब के सब कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है हरम शरीफ में, एक वफद मर्दों का आता है और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लेता है। उसमें एक ऐसा मर्द है जो अपने निगाहों को छुपाए हुए आंखों से आंसू जारी है, सहमा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कौन है? किसी ने कह दिया या रसूल अल्लाह ये वहशी हैं जिन्होंने मकाम उहद में आपके चचा को नेजा मारा था। अल्लाह के रसूल की आंखें भीग गई, वहशी तुम हो? अर्जगुजार होते हैं या रसूल अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने आपके चचा को नेजा मारा था, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आका ने फरमाया आओ करीब आओ, कलमा पढ़ा देते हैं, इस्लाम में दाखिल फरमाया। आपने फरमाया ए वहशी लेकिन तुम हमारी निगाहों के सामने ना आया करना, जब तुम आ जाओगे तो मेरे चचा याद आ जाएंगे। वहशी रोते रहते थे इस जुमले पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना होने का मामला आया था। औरतों का एक गिरोह आता है, औरतें इस्लाम का कलमा पढ़ रही हैं। तब तक सरकार ने फरमाया ये कौन सी औरत है? किसी ने कहा अबू सुफियान की औरत हिंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हिंदा हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं ही हिंदा हूँ। कलमा पढ़ोगी? कलमा तो जरूर पढ़ूंगी लेकिन आपसे कुछ बात करनी है। बहुत ढीठ औरत मानी गई थी वो। उस वक्त भी उन्होंने सरकार के सामने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं चंद बातों को पूछना चाहती हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते क्या पूछती हो? सरकार ने इरशाद फरमाया पूछो जो तुम्हें पूछना है। उन्होंने चंद बातें पूछी, सरकार ने जवाब दिया। उसके बाद सरकार से अर्ज करती है चोरी करना क्या है? आपका ने फरमाया चोरी जायज नहीं है, हराम
है। कहती है मैं अपने शौहर अबू सुफियान की जेब से कभी कभी निकाल लिया करती हूँ कुछ दिरहम दीनार, ये सरकार ने फरमाया तुम्हारा मामला है। फिर उन्होंने चंद बातों को और कहा ए हिंदा बता तेरा ख्याल क्या है। तो कहती है अब हमारा ख्याल आप सुन लीजिए, सारे लोगों में सबसे बुरा मैं पहले आपको जानती थी, लेकिन आज हमारी निगाह में आपसे अच्छा रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपसे जैसा महबूब कोई नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पेश फरमाया, हिद्दा भी दाखिले इस्लाम हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों को इस्लाम में दाखिला आपने दे दिया। अबू जहल तो मकामे बद्र में मार दिया गया था, मगर उनके लड़के अकरमा हैं, अकरमा भाग गए थे मक्का छोड़ करके। अकरमा की बीवी इस्लाम कबूल कर लेती हैं। चुनांचे औरतों की एक जमात और आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी कलमा पढ़ा दिया। अकरमा की बीवी दौड़ करके बाहर निकलती हैं और चली जाती हैं, अकरमा भाग करके गए थे। अकरमा को कहती हैं अकरमा वापस चलो, अल्लाह के रसूल बड़े रहीम करीब हैं, सबको माफी का परवाना दे दिया है। कहा बेगम तुम चली जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मोहम्मद मुझको नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ मेरी बहुत तलवारें चली हैं, मेरा बाप बद्र में मारा गया है, मैं बहुत बड़ा उनका दुश्मन हूँ। बीवी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए अमन का परवाना मांग लिया है, अल्लाह के रसूल से मैं कह करके आई हूँ या रसूल अल्लाह मेरे शौहर भाग गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। सरकार ने फरमाया जाओ ले आओ, उनके लिए अमनो अमान है, तुमको रसूलुल्लाह ने अमनो अमान दे दिया है, इतना सुनना था। अकरमा थोड़ी देर तक सोचते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, जिस रसूल के खिलाफ मेरी इतनी तलवारें चली हैं वो मुझे अमनो अमान दे रहे हैं, वाकई वो नबी बरहक हैं, वाकई वो रसूलुल्लाह हैं। वो अपने बीवी के साथ अपने घर आते हैं और कहते हैं ए बीवी तुम मुझे कैसे रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलोगी। कहती हैं चलो तुम मेरे साथ लेकर के आई। अल्लाह के रसूल अपने घर में हैं, तब तक जाती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे शौहर आ गए। इतना सुनना था, सरकार बहुत फुर्ती से उठे, चादर सरक कर जमीन पर आ गई। अल्लाह के रसूल बढ़े और अकरमा को सीने से लगाया, अकरमा कदमों पर गिर पड़े, या रसूल अल्लाह आप कलमा पढ़ा लो, मेरे सरकार अब कलमा पढ़ाओ। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा करके अकरमा को इस्लाम में दाखिल कर लिया। बाप है काफिर है, मैदान मकाने पत्र में मारा जाता है, बेटा रसूलुल्लाह के कदमों में आ रहा है। एक मर्तबा सहाबा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेराज का वाकया बयान करते हुए कि मैं जब जन्नत को देखने के लिए गया तो मैंने जन्नत में देखा अंगूर का एक गुच्छा है, उस गुच्छे पर अबू जहल का नाम लिखा हुआ है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है। आका फरमाते मतलब मालूम हो जाएगा। जब अकरमा इस्लाम लाए तो आका ने फरमाए मेरे सहाबा जो जन्नत में मैंने अंगूर का गुच्छा देखा था वो अबू जहल का लड़का ही अकरमा इस्लाम कबूल कर रहा है, इस्लाम ला रहा है। अल्लाह अकबर, वो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये सरकार के माफी का परवाना जारी हो रहा है। इस तरह से लोग नबी कौनैन के कदमों में आ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया बिलाल मक्का में अजान कहो। हजरत बिलाल मदीना में अजान कह रहे थे, मक्का में अजान नहीं हुई थी। आज मक्का में पहली बार अजान होने जा रही है। अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया जाता है बिलाल अजान कहो। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कहां से अजान कहूं। आका फरमाते हैं खाने काबा पर चढ़ जाओ। काबा की छत पर हजरत बिलाल चढ़ गए। हजरत बिलाल ने सरकार की तरफ अपने रुख अनवर को कर लिया और अजान देना शुरू कर देते हैं। जब देखा मक्का के और बड़े बड़े लोगों ने जो अभी अभी इधर उधर थे अपने अपने घरों में छुपे हुए थे कि बिलाल जैसे हबशी गुलाम को रसूलुल्लाह ने खाने काबा पर चढ़ा दिया है, इतनी इज्जत दी है, तो सारे मालदार भी बाहर निकल आए। जब रसूलुल्लाह ने गुलाम को इतनी इज्जत दी है तो मालदारों को रसूल कितनी इज्जत अता फरमाएंगे। सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं। मेरे सरकार ने मक्का फतह फरमा लिया। मक्का के लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लामी झंडा लहराने लगता है। मदीना तैयबा के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लिए हैं, इस्लामी झंडा लहरा रहा है। नबी इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता फूलता चला जा रहा है। बड़े बड़े कबीले के लोग आ रहे हैं, अब कोई नहीं बच रहा है। इधर उधर जो भाग गए थे वो फिर अपने अपने जंगी महाज को कायम कर रहे हैं। ये खैबर की जंग है, ये फलां जगह की जंग है, ये जंगे मोता है, ये फला गजवा है। कई गजवात हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 गजवों में शिरकत की है। गजवे और सराया मिला करके 27 सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस साहिल जिंदगी में नबूवत और रिसालत के हुए हिजरत के 5वें साल अल्लाह के रसूल के सामने गजवे खंदक का मामला पेश आया था और उसके सिर्फ 2 ही साल के बाद मक्का शरीफ के फतेह का मामला सरकार के सामने आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के फतह को फतह किया। ठहरे रहे सरकार। अल्लाह के हबीब जब ठहरे रहे ज्यादा रोज हो गया तो मदीना वालों को कुछ तशवीश हुई कि हो सकता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं रुक जाएं, इसलिए कि अपने आबाई वतन पर आ गए हैं। कुछ नौजवानों में बातें होने लगी। तब तक सरकार ने सबको इकट्ठा किया। आपने फरमाया मैं नौजवानों से कुछ बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह हमारे नौजवान कुछ इस तरह से कह रहे हैं। सरकार ने अंसार को इकट्ठा किया। ए अंसारियों सुनो सुनो, तुम ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ ठहरूंगा, अरे सुन लो मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। मैं मदीना गया हूँ तो मदीना ही रहूंगा। अंसार की खुशी की इंतहा नहीं रही। उनको इतनी खुशी हासिल हुई कि मेरे सरकार फिर हमारे शहर में चल रहे हैं, मेरे आका फिर वहीं तशरीफ ले चल रहे हैं। नबी कौन है
हुसैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 18 रोज या 22 रोज या 19 रोज रह करके मक्का शरीफ में और फिर मदीना तैयबा के लिए मेरे सरकार रुखसत हो जाते हैं। मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। मक्का की जिम्मेदारियां और सहाबा किराम को सौंप दी जाती हैं। मक्का की सफाई हो गई है, बुतों की आलाइशों से पाक कर दिया गया है। मक्का के गिरदो नवाह में जो बड़े बड़े बुत पाए जा रहे थे, सहाबा को भेज भेज करके सरकार ने उन सबको तोड़वा दिया। आज तो गड़िया जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैगंबर इस्लाम ने हमारे बुतों को तोड़ा था। क्यों हमारे बुतों को तोड़ा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बुतों को कल भी पैगंबर इस्लाम ने तोड़ा था और आज भी मुसलमान बुत को माबूद नहीं मानता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम माबूद मानते हो, तुम्हारा मामला है, हम माबूद नहीं मानते हैं। हम तो माबूद सिर्फ एक माबूद को मानते हैं जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। हमारे पैगंबर इस्लाम ने शिर्क और कुफ्र से कौम को निकाल करके एक रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया है। मज़हब इस्लाम हक है, जाल हक ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, आया हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिटना ही था। तुम्हारा ये एतराज कि पैगंबर इस्लाम ने क्यों तोड़ा बुतों को, ये एतराज कोई एतराज नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने बुतों को तोड़ा, बुतों की आलाइशों से लोगों को पाक किया, ये बुत खुदा नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने ज़हन दे दिया था, ये पत्थरों के सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो? ये पत्थर माबूद नहीं है, तो जब माबूद नहीं है तो उन्हें निकाल ही दिया जाएगा, उन्हें तोड़ ही दिया जाएगा। तुम भी तो पत्थरों को तोड़ रहे हो, पत्थर तोड़कर सड़क बना रहे हो, पत्थर तोड़कर लाइन बना रहे हो, पत्थर तोड़कर पुल बना रहे हो, पत्थर तोड़कर मकान बना रहे हो। अगर पत्थर तोड़ने ही की बात आई है तो तुम भी तो पत्थर तोड़ रहे हो। ये कौन सी बात है? एक पत्थर की तुम इबादत करते रहो, दूसरा पत्थर उसी जिन्स से उसे तोड़ करके फेंक दो। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। तुम भी तो आखिर पत्थरों को तोड़ रहे हो, कल भी पत्थर तोड़े जा रहे थे, आज भी पत्थर तोड़े जा रहे हैं, क़यामत तक पत्थर तोड़े जाते रहेंगे। मुसलमान कलमे तैयबा बुलंद करता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा गूंजा और गूंजता रहा, गूंजता रहे।